तथा प्रशिक्षक मिस्टर यासिर अब्बास जैदी साहब का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी छात्र छात्राओं का, जो ऑफलाइन प्रतिभाग कर रहे हैं उनका भी, और जो ऑनलाइन प्रतिभाग कर रहे हैं पूरे देश से, उन सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, यह कार्यशाला 2 सत्रों में आयोजित की जा रही है। प्रथम सत्र छात्र छात्राओं के लिए है तथा दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से फैकल्टी के लिए है, जिसमें आप सभी सहर्ष सादर आमंत्रित हैं। मैं महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य, जिनके देखरेख में, जिनके संरक्षण में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर संजीव राठौर साहब, आज की इस कार्यक्रम की चेयरपर्सन डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता मैडम, महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण से निवेदन करूंगा कि मां सरस्वती पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय प्राचार्य सर, मुख्य अतिथि सर एवं समस्त प्राध्यापकगण। मैं यहाँ जरा फोटो देखो, आप लोग कैमरा लेके फोटो ले अली फोटो खींच ले। फोटो खींचो। लाइव कर दिया, मैं इसे फोटो खींच रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात। अब जी सर मान लो सर, आइए मैडम आइए, हमें चर्चा कर लेते हैं। आइए सर। जी जी बिल्कुल, आप करें सर। आइए। सर चश्मा लगा फिर शुरू भाई। इसको तुम जेब में रखो, मत रखो, जेब में डालो इसको। मैं इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर संजीव राठौर सर से मैं आदरणीय अतिथि महोदय, ऑर्गेनाइजिंग टीम आदरणीय प्राचार्य सर से निवेदन करूंगा कि आसन ग्रहण करें। मैं आता हूँ सर। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक
डॉक्टर संजीव राठौर सर से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के प्रशिक्षक तथा आज के मुख्य अतिथि मिस्टर यासिर अब्बास जैदी साहब का ओके भेंट कर सर का स्वागत करें। डॉक्टर संजीव राठौर सर। मैं राठौर सर से निवेदन करूंगा कि यह कार्यक्रम जिसकी देख रेख क्या हो रहा है आदरणीय प्राचार्य सर को ओके भेंट कर ये पूरे महाविद्यालय के विद्वान हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर संजीव राठौर सर से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के विषय में इसके एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है उनके विषय में सभी को बताएं। डॉक्टर संजीव राठौर। Namaskar, respected Principal Sir, our patron and custodian chairperson of this workshop. Honored guests, distinguished speaker Mr. Yasir Abbas Zaidi sir, and participants, faculty, and students from different states of the country. I warmly welcome you to this significant event. Today, we gather to enhance our understanding of intellectual property rights (IPR) and its vital role in promoting innovation and industry. We are grateful for the collaboration between the Police Department and IPSC cell of the government of Badayon, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, New Delhi. This partnership has made today's workshop possible. I extend my heartfelt gratitude to our keynote speaker, Mr. Yasir Abbas Zaidi sir, who is examiner of patent and design, patent office. Patent and Design Patent Office, Delhi, whose expertise will undoubtedly enrich our understanding of IPR. You know it very well. We are also thankful to our organizers and everyone involved in this, making this event a success. This workshop aims to provide a platform for students and faculty members and explore the intricacies of IPR. We have structured the workshop into two sessions to cater to diverse needs. In one session, this session is especially designed for students. This will conduct from 11 onwards, and session 2, it is conducted for faculty members from 2 p.m. onwards. Our objectives of this workshop are clear: to familiarize participants with the IPR concept and significance, to promote insights into patent filing procedures and intellectual property protection, to provide insights into patent filing, encourage innovation and entrepreneurship, to foster collaboration between academia and industry, equip participants with knowledge to protect their creative works. Through this workshop, we strive to create a culture of innovation, entrepreneurship, and collaboration. We are confident that the knowledge and insights gained today will have a lasting impact on our academic and professional pursuits. Thank you once again for joining us in both online and offline sessions from all over the country. Let's work together to make the
this workshop a resounding success. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव राठौर सर। अब मैं आशीर्वचन एवं अतिथि के स्वागत हेतु आमंत्रित करूंगा महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार बत्रा सर को। वो यूट्यूब का लिंक मुझे भी भेजना। Good morning, everyone. Good morning, everyone. Yes, it is the voice of Rajki Mahavidyalaya Badaun. Thank you for your sound voice. Today we are going to organize a workshop on intellectual property rights. First of all, we have to know the intellectual property rights क्या हैं. Then we come to the motive and need of this study. Any idea regarding intellectual property rights, IPR? Any idea? No idea. An idea can change your life, but we have a lot. Every business is based on idea. पहले बेटा कोई भी चीज जो होती है वो सिर्फ हमारे विचार होती है और विचार से वो कन्वर्ट होती है। I have a very short meeting with Jadita on the tea. उन्होंने मेरे को अभी भी एक बात बताई जो मेरे को अपील कर दी कि ई रिक्शा का आइडिया इंडियन का था, but due to unawareness that captured by Japan. For this purpose, for this seminar, हमारे बीच में आए हमारे जैसा आपका हार्दिक अभिनंदन। राजकीय महाविद्यालय बदायूं में इस्तकबाल आपका, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार देता हूँ हमारे चीफ मेडिकल डायरेक्टर हायर एजुकेशन प्रोफेसर अमित भारद्वाज जी का। अगेन आई एम एक्नॉलेजिंग माय ग्रेटिट्यूड टू प्रोफेसर संध्या रानी जी, Regional Higher Education Officer, Bareilly Muradabad Mandal. And the idea behind this workshop, Department of Physics, IQAC, Dr. Sanjeev Rathore ji, being a program coordinator, Dr. Shraddha Gupta ji, organizing committee में पूरा जो संभाल रही है, पूरी बात को संभालती है हमारे कार्यक्रम। प्रोफेसर रवि सिंह यादव जी, प्रोफेसर हुकुम सिंह जी, and with us Dr. Priyanka ji, Dr. Saita ji, and all the faculty members of Rajki Mahavidyalaya Badaun. And this session is totally organized and dedicated to you people. आप लोगों के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे हम पूरी बातचीत करेंगे। 2 मिनट की बात और करूंगा आपसे, क्योंकि मेरे इस पे एकाधिकार नहीं है, मेरा इस पे एक पद राज्य नहीं है इस विषय पे, इसलिए मैं जिनका एकाधिकार है उनको आमंत्रण दूंगा। उससे पहले मैं छोटी छोटी 2 बातें बता के आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है और क्यों हमें ये तो बस ऑफिस में बताने के लिए भी सेशन हुआ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स are the legal rights which is granted to individual or organization. I written a paper, article. उस आर्टिकल के अंदर मैंने जो लिखा उसे पेटेंट करा लिया। अब उसको कोई भी यूज जब करेगा, he or she और ऑर्गेनाइजेशन, उसको पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे आइडियाज हैं जो काम तो हो रहा है, ड्यू टू अनअवेयरनेस स्प्रेड नहीं हो रहा, पेटेंट नहीं हो रहा। हमारी जहाँ पे मोनोपोली होनी चाहिए वो मोनोपोली ब्रेक हो जा रही है। अब पेटेंट राइट्स की बात करते हैं। पेटेंट राइट्स कहाँ कहाँ हैं? पेटेंट राइट में आपको कॉपीराइट है, आपके ट्रेडमार्क्स हैं, इंडिविजुअल डिजाइन हैं। आज की डेट में टाइटल तक पेटेंट होते हैं, मूवी के टाइटल होते हैं ना, पेटेंट हो जाते।
So there is a need of us to know about intellectual property, AI and machine engineering. For this purpose, we are going to organize this workshop. It is bifurcated in two parts. First session exclusively for learners, means students here. Again, learner. Second session is also learner. Learner may be a student or a teacher. But the second part is a more technical. That is based on the how to use, how to apply such IPR. तो सेकंड पार्ट में भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे जुड़ भी सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो। और मैं इसके साथ स्वागत करता हूँ हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऑनलाइन व्यूअर्स का, जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया कि हम इस तरह के वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करा पा रहे हैं। जो हमारा मोटिव है वो मोटिव हमारा नहीं है, वो मोटिव भारत सरकार का है, वो मोटिव उत्तर प्रदेश सरकार का है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी का है कि शिक्षा पहुंचे द्वार द्वार। उस द्वार द्वार तक पहुंचाने के लिए, उस घर घर तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए उसके लिए जागरूकता भी जरूरी है। इसी जागरूकता शिक्षा अभियान के अंतर्गत नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो जो क्रियान्वित किए जाएंगे उसके लिए राजकीय महाविद्यालय बदायूं प्रतिबद्ध है और ऐसे कार्यक्रम को करता रहेगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग की आकांक्षी। धन्यवाद और आप सब धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य सरकार, जिन्होंने इस कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत की। और अब हम देख न करते हुए हमारे आज के प्रशिक्षक और अतिथि वक्ता मिस्टर यासिर अब्बास जैदी साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ व्याख्यान में। आइए। इधर हेलो आवाज A very yes, I'll be using it. जी कोई दिक्कत आप लोग माइक को रखा उधर जा टेबल पर रख दियो। A very good morning to the honorable तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा। faculties and the management of this astonishing institute, I'll say, that I got to witness today, and the mode of language that I'll be using would be preferably for Hindi, so that I'm able to better connect with the audience in present of who are present in front of me. But उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि हम और संजीव सर जो हैं लगभग 1 साल से टच में हैं। हमने ऑनलाइन माध्यम से भी कई नीपैम प्रोग्राम्स कराए हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम यासिर अब्बास है। आई हैव कम डायरेक्टली फ्रॉम दिल्ली टुडे। इंडियन पेटेंट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मैं काम करता हूं, एंड हमारी भारत सरकार का, जैसे भी सर कह रहे थे, हमारा ये मिशन है कि एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको बच्चों तक, इसको प्रोफेसर्स तक कुछ इस तरह से पहुंचाया जाए कि देश की इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और आईटी इकोनॉमी से हटकर नॉलेज इकोनॉमी बन जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझें, जिससे कि आप बेटर इस चीज से कनेक्ट कर पाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे आकर के मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या बड़े शहरों में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा देना एक अलग चीज होती है, लेकिन खुद अपने शहरों में बदायूं, बरेली, उझारी, इन जगहों पर अगर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है तो वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन इंस्टीट्यूट्स में आप मौजूद हैं। ये उनके एफर्ट्स हैं कि वो, क्योंकि देखिए हम शारदा यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, हम टीएमयू भी जाते हैं, और हम इस इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं क्योंकि यहां पर लोग मौजूद हैं जो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है बड़े यूनिवर्सिटीज में, वही एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए हमारे इंस्टीट्यूट। सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द होल मैनेजमेंट टीम जिन्होंने किया है इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज। नाउ
I would like to take the names, our patron Dr. Narendra Kumar Batra, then the program coordinator, of course, a very good friend of mine, Dr. Sanjeev Rathore. Then we have organizing committee, Dr. Shraddha Gupta, Dr. Ravendra Singh Yadav and Dr. Hukum Singh. Now without taking much time, मैं आपको बता देता हूं कि आज की इस सेशन में हम आए क्यों हैं, और इसकी शुरुआत भी चलिए कहानी से करते हैं। मेरी कोशिश आपसे यह होगी कि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं, कुछ ऐसी कहानियों के माध्यम से आपको कुछ ऐसा बता सकूं जो आपके साथ में ठहर जाए, आपके साथ में रुक जाए, और कहानियां ऐसी जो सच्ची हैं, जिसको आप आराम से गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। यहां पे कितने लोगों ने इंडिया शार्क टैंक के बारे में सुना है? सोनी पर आने वाला एक एपिसोड शार्क टैंक के बारे में आपने सुना है? चलिए कहानी का आगाज यहां से करते हैं। शार्क टैंक के फर्स्ट सीजन में एक एपिसोड है जिसमें एक प्रोडक्ट लेके, आप लोगों को बेसिक जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं होता क्या है। एक प्रोडक्ट लेके आया जाता है कि भाई हम इस प्रोडक्ट की एक कंपनी बनाना चाहते हैं, सामने वाले लोग उसमें पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है और बिजनेस बनाया जाता है। हम सब लोग ये देखते तो हैं, मगर हमें वो रास्ता नहीं मालूम कि हम कैसे अपना प्रोडक्ट बना करके शार्क टैंक या उस जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जा सके। वो रास्ता बताने आज मैं आपको यहां पर आया हूं, लेकिन मैं शार्क टैंक से नहीं आया हूं, मैं भारत सरकार की तरफ से आया हूं, ठीक है, क्योंकि ये एक अनऑफिशियल डे है, सैटरडे है, तो मैं अपना टैग वगैरह यहां पर नहीं पहना हूं, ठीक है, बट आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट आपको एग्जांपल देना है शार्क टैंक से। उसमें क्या होता है, फर्स्ट सीजन में एक एपिसोड है जिसमें वो एक पेंट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? पेंट। वो कहते हैं सर हम ये पेंट की एक कंपनी बनाना चाहते हैं। वो पूछते हैं इस पेंट में नया क्या है? वो कहते हैं कि सर अगर इस कमरे को भी पेंट कर दिया जाए तो इस कमरे में से एक स्मेल आएगी। किसी भी कमरे में अगर नया नया पेंट हो तो एक स्मेल आती है, यूनिक, राइट? लेकिन आपको जान के हैरत होगी वो स्मेल ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ नहीं होती। उसमें बेंजीन जैसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसरस भी हो सकते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स। तभी बच्चों से या फिर फीमेल से कहा जाता है कि इस कमरे में मत जाओ, यहां पर पेंट हुआ है, बच्चों को इससे दूर रखा जाए। नंबर 1। नंबर 2, जब भी पेंट करते हैं पेंटर्स तो आपने देखा होगा उनके कपड़े, उनके हाथ सबके सब पेंट में सन जाते हैं, जिसको नॉर्मल पानी से रिमूव नहीं किया जाता। उसको रिमूव करने के लिए उन्हें दूसरे केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं जिससे वो उसे साफ करें। अब आप यहां पर कहानी भी समझते रहिए और ये भी देखते रहिए कि प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो इस कंपनी का ये कहना था शार्क टैंक में जाकर के कि सर हम एक ऐसा पेंट बना के लाए हैं कि जिसको पेंट करने के बाद वैसी स्मेल भी नहीं आती। नंबर 1। नंबर 2, पेंटर के हाथ पे कोई भी स्टेन्स नहीं आते। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उन्होंने डिमांड करी 40 करोड़ की। कितने की? 40 करोड़। मैं दोनों तरफ लेके चल रहा हूं, मुझे आपको अवेयरनेस भी लेके चलना है और आपको बिजनेस मॉडल्स भी समझाने हैं कि कैसे हमारे बदायूं में पढ़ने वाले बच्चे इस चीज पे ध्यान दें कि जब वो यहां से पास आउट हो तो वो जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोड्यूसर बने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा है और ये बात है बच्चों तक कि अब वो जमाना गया कि 70-75 साल से हम इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई बाहर की कंपनी आएगी, हमें नौकरी देगी और हमें नौकरी मिलकर के हमारा घर चलेगा। अब ये आधुनिक भारत है, ये भारत है जो 2050 की तैयारी कर रहा है, जब ये एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। और डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए हमें नौकरी ढूंढनी नहीं है, हमें नौकरी बनानी है। और नौकरी बनाने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट बनाया कैसे जाता है और उसको मार्केट तक पहुंचाया कैसे जाता है। उसका पूरा रास्ता मेरे पास है। ऑफ कोर्स एक दिन में सारी चीजें नहीं हो सकती, सारी बातें आप तक नहीं, लेकिन मेरी कोशिश यह होगी ज्यादा से ज्यादा आप तक आज पहुंचाया जाए। चलिए अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एक नया पेंट बन गया है। उन्होंने डिमांड करी है 40 CR की। इन्वेस्टर पैसा लगाने ही जा रहा था कि इतने में उसने पूछा प्रोडक्ट बनाया किसने है। अब यहां पे सुनिएगा कहानी। जो बंदा वहां पे खड़ा हुआ था उसने कहा सर प्रोडक्ट मैंने नहीं, ये मेरे बराबर में एक पेंटर खड़ा हुआ है, इकबाल,
आप लोग जाके सर्च करिएगा, इकबाल स्टोरी के नाम से आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ये पेंटर खड़ा हुआ है इकबाल, इसने प्रोडक्ट बनाया है। इन्वेस्टर्स घूमे इकबाल की तरफ कि भाई साहब तुम कौन हो? उसने कहा सर मैं यहां पर पेंट करता था इंडिया में, मुझे पैसे अच्छे नहीं मिलते थे तो मैं दुबई चला गया। वहां मैंने देखा कि साहब अलग ही तरीके के पेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो कुछ कमाया उस कमाई से वापस आके आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसके पास कोई कॉलेज नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने वैसा ही एक पेंट बनाया कम दाम में, कम खर्चे में, जिसमें स्टेन्स नहीं है, जिसमें स्मेल नहीं। लेकिन उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सेशन नहीं अटेंड किया था, उसे अवेयरनेस नहीं थी। ऐसे में वो कहां जाएगा? वो उसी मालिक के पास जाएगा जो मालिक उसे काम देता है। उस मालिक के पास जाते ही वो मालिक चालाक था। उसने कहा एक काम करो, तुम मुझे ये प्रोडक्ट दे दो और मैं तुम्हें महीने के 40,000 रुपए महीने की नौकरी पे रखूंगा। अब यहां पे दिल पे हाथ रख के बताइएगा, मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं 2018 का पास आउट हूं। अब तो टाइम बहुत हो गया, वरना जब मैं इस सर्विस में आया था तो इट वाज 2019। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस 2018 में किया था एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट सिलेक्टेड एज अ ग्रुप एवेस्टेड ऑफिसर इन 2019। तो जब मैं जाकर के स्टूडेंट्स के सामने कहता था तो मैं उनसे एक बात कहता था कि मैं रिलेट कर सकता हूं कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं। अब तो खैर टाइम हो गया, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि यहां पे अगर लेट अस से 100 स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो उसमें से 80 से 70 स्टूडेंट्स कहेंगे सर 40,000 की अगर हमें नौकरी मिल गई हम आज जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। राइट? ठीक है, इसी मेंटालिटी को आज थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। अपनी क्षमता पहचानना अगर भारतीय छात्र सीख गया तो देश को डेवलप नेशन बनने में टाइम नहीं लगेगा। प्रॉब्लम यह है कि हमने यह समझ लिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। खैर बात से हटते हुए नहीं, वापस आते हैं एग्जाम्पल पर। इकबाल ने पेंट बना लिया है, बना करके उसको पता नहीं है कि इसको मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, इसकी इंडस्ट्री कैसे सेटअप करेंगे, कुछ नहीं पता। वो गया उस आदमी के पास, उसने 40,000 रुपए महीने नौकरी पे उसे रखा, उसका प्रोडक्ट लिया, शार्क टैंक पे आया, डिमांड करी 40 करोड़ की। This is what happens when you have lack of awareness for your intellectual property. मैंने आपके सामने कोई डेफिनेशन नहीं रखी। मैं भी एक गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हूं, आपको बता दूं। इलाहाबाद में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जिसका पॉलिटेक्निक बहुत फेमस है। वहीं से मैंने इंजीनियरिंग करी है। हमारे प्रोफेसर्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक खासियत होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर पैसे के लिए नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाना पसंद होता है। अगर वो चाहते तो वो आज की तारीख में बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी जगहों पर पढ़ा रहे होते। तो वैसे ही हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, एसकेएस सर हम उनको बोलते थे, बहुत खतरनाक टीचर होते थे। आप लोगों में भी होंगे जिनका सबसे हल्का हाथ होता है। हल्का हाथ का मतलब हमारे यूपी में कहते हैं मजाक मजाक में मार देते थे, मजाक मजाक, मैं भी पिटा हूं उनसे, मजाक मजाक में पिट जाते थे। एसकेएस सर कहा करते थे पढ़ो अंग्रेजी में, समझो हिंदी में, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी किसी चीज की डेफिनेशन को रटने की कोशिश मत करो, हमेशा एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करो। अभी अभी मैंने एक पेंट की कहानी आपके सामने रख के आपको यह बता दिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते किसको। हमारे दिमाग से उपज होने वाली किसी भी चीज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगर मेरे दिमाग से निकली है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, अब चलिए इस कहानी को समेट करके जल्दी से समझते हैं इस सेशन के एंड तक आपको मिलने क्या वाला है। हमने इकबाल की स्टोरी से दो चीजें सीखी। एक, प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसको एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाया जाता है, लोगों से इन्वेस्टमेंट्स लिए जाते हैं और फिर उसके बाद में उसे और आगे कदम पे लेके जाया जाता है। दूसरी सबसे अहम बात, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, जिस मिशन के तहत मैं आपके सामने आया हूं। अगर हमारे छात्रों को अवेयरनेस नहीं होगी तो उनके प्रोडक्ट्स, और मैं बता दूं विथ वेरी मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा, नॉट ओनली स्टूडेंट्स,
अगर हमारे प्रोफेसर्स को इसकी जानकारी नहीं होगी तो रेगुलरली ये होता रहेगा कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलरली बाहर के देशों तक जाती रहेगी और हम इकोनॉमी पे लूज करते रहेंगे। हम लोग रेगुलरली सर्विस करते रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट कोई और देखता रहेगा। जहां पर पैसा है वहां पर कोई और बैठा हुआ है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट है, जहां पे सर्विस है, जहां पे महीने की पगार मिल रही है, वहां पे हम बैठे नजर आएंगे। आज के सेशन के एंड में मुझे उम्मीद आपसे यह है कि आपकी थोड़ी सी मेंटालिटी, एक भी बच्चे की अगर मेंटालिटी चेंज हो गई और वो इस डायरेक्शन में सोचने लगा कि मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बनाऊं, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग आज के सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ में जितना इंटरेक्टिव हो सकूं, मैं इंटरेक्टिव हूं। मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सेशन के बीच में टहलना पसंद करता हूं क्योंकि मेरी आवाज इतना तेज है कि पीछे तक आ रही होगी, राइट, पीछे कॉर्नर तक आ रही है, पीछे तक, तो मुझे माइक की इतनी जरूरत होती नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करूंगा, कोशिश करूंगा आपको टीच करने की, क्योंकि प्रोफेसर यहां मौजूद है, इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये समझ जाएंगे। आप लोगों को जितना भी स्टूडेंट का सेशन है उसमें मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज का सेशन किस चीज के बारे में है। हम लोग आज बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, कितनी टाइप्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको हम मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, इससे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। ऑफ कोर्स डिटेल्स में मैं आज नहीं जा पाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल्स में मैं प्रोफेसर्स के साथ में जा सकता हूं, टीचर्स के साथ में जा सकता हूं, लेकिन आप लोगों को आज सिर्फ और सिर्फ फूड फॉर थॉट देके जाऊंगा, जिसपे आप सोचें, चिंतन करें और मंथन करें और कुछ कोशिश करें अपने से निकालने की। मेरे नंबर या मेरी ईमेल आईडी ओपनली अवेलेबल है, स्टूडेंट्स मुझसे वन ऑन वन इंटरेक्ट करते हैं, राइट। ऑफ कोर्स डॉक्टर संजीव राठौड़ यहां पर मौजूद हैं, आप लोग इनके चैनल से भी आ सकते हैं, राइट। आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन आपको 15 to 20 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चनर राउंड रखेंगे। आपके सवाल अगर सेशन के बीच में आ रहे हैं आप पूछ सकते हैं, वरना आप सेशन के एंड में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आखिर में एक बात बता दूं, मैं भले ही दिल्ली से आया हूं, मेरा रहना सहना, मेरा ननिहाल बरेली का है, तो इसलिए यह मत समझिएगा कि कोई बहुत दूर से आया है। मैं आपका एक्सेंट भले ही नहीं बोल पाता हूं, क्योंकि बड़ा अच्छा एक्सेंट है यहाँ का, बरेली का और बदायूं का, वो भले ही नहीं बोल पाता हूं क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इलाहाबाद का हूं, बट बरेली से मैं बहुत नजदीक हूं और इसीलिए आप सर के माध्यम से बदायूं के भी बहुत नजदीक हो जाऊंगा। सो विद दिस वी विल स्टार्ट द सेशन। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, भारत सरकार ने यह देखा कि हमारे देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अवेयरनेस नहीं है, इसलिए यह जरूरी है कि स्टूडेंट्स तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए, प्रोफेसर्स तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाए, उसे प्रोटेक्ट कराएं और प्रोटेक्ट करा करके हमारी देश की नॉलेज इकोनॉमी को बूस्ट करें। आइए देखते हैं कैसे। ये कुछ आवाज कर रहा है, देखिएगा। अच्छा, इन्वर्टर की वजह से हो गया क्या स्टार्ट? ठीक है, चलिए सबसे पहले आज के इस पार्ट में, इस सेशन के पार्ट में ये देखते हैं क्या क्या चीजें आप लोग आज सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो आप सीखने वाले हैं वो ये कि सर हम बदायूं में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम कैसे कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम कैसे कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं, हम कर भी सकते हैं कि नहीं। मैं इसलिए आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आया हूं जिसको सुन के आप हैरत में आ जाएंगे कि इस चीज की भी इंडस्ट्री बनाई जा सकती है, इस चीज के भी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं और उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट तक ला सकते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें एक अलग है, आपके प्रोफेसर यहां पर मौजूद। लेकिन आज हम लोग प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन निकालना सीखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज की बात करते हैं। दूसरी चीज ये, हमें पता तो हो कि कितनी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, हम पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को मिक्स ना कर रहे हो। दूसरी चीज जो हम ये सीखेंगे। और तीसरी चीज ये, जब मैं यहां से आज जाऊंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 4-4, 5-5 बच्चों का ग्रुप बना करके आप लोग आपस में किसी सिंगल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और एक यूनिक सोल्यूशन निकाल के लेके आएंगे, और उस सोल्यूशन को हम लोग आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फॉर्म में
प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम लोग एक टेक्निकल ग्लिच फेस कर रहे हैं, तो मैं अपना सेशन बिना उसकी मदद से स्टार्ट करता हूं। मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो आई एम केपेबल इनफ कि उसके बिना भी मैं सेशन कर दूंगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आपका कॉलेज, आप लोग फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था में हैं। हम लोग नीतान के लिए ऐसे ऐसे कॉलेजेस में गए हैं या ऐसे ऐसे स्कूल्स में गए हैं जहां बच्चों ने जमीन पे बैठ करके सेशन सुने हैं और हम लोगों ने चौक से उन्हें पढ़ाया है। क्योंकि अब यह बात देश की है, और जब बात देश की होती है तो यह नहीं देखा जाता कि माध्यम कैसा है, यह देखा जाता है ऑडियंस कैसे है। अगर आप सुनना चाहते हैं, मैं सुनाना चाहता हूं, तो माध्यम मैटर नहीं करता। और अगर सुनना नहीं चाहता सामने वाला, तो आप सर एसी का हॉल कर दीजिए, दुनिया भर की चीजें लगा दीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं। ठीक है, चलिए पहली चीज पे बात करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज अ प्रॉब्लम एंड हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन। मैं ये चश्मा पहना हूं, हो सकता है अगर मैं कहीं पे अपना फेस वॉश करने जा रहा हूं या कुछ करने जा रहा हूं, तो मुझे अपने इस चश्मे को रखने की जरूरत पड़े, राइट। एक सॉल्यूशन यह है कि पॉकेट में रख लिया, नंबर 1। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जहां पे यहां पे पॉकेट नहीं होती, राइट। तो एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, सर क्लिप लगा लीजिए, क्लिप लगा लीजिए। आपको आईडी कार्ड लगाना है या फिर कुछ करना है, या फिर ऐसा कोई यहां पे वो बना लीजिए जिससे कि आप अपने चश्मे को उसमें फंसा सकें, ठीक है। क्लिप के साथ में एक प्रॉब्लम है, वो कपड़े में फंस सकती है, कपड़े को फाड़ सकती है। वहीं पे एक टेक्निकल बंदे, कितने लोग यहां फिजिक्स हैं? गुड। अच्छा, एक बात और बता दूं, इस सेशन का लेना देना आपके माध्यम से कुछ नहीं है। कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी मैंने पेटेंट फाइल करते हुए देखा है, ठीक है। वो कैसे किया है वो उससे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे सेशन को समेटना भी है। एक टेक्निकल बंदे ने कहा, सर एक काम करिए, मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसे क्लिप बनाएंगे, एक पीछे मैग्नेट रहेगा, एक आगे मैग्नेट रहेगा। मैग्नेट दोनों के दोनों चिपकते ही आपके कपड़े पे चिपक जाएगा। आप अपना चश्मा निकालिए और उस पर इस तरीके से टांग दीजिए, सिंपल। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस एक सिंगल प्रोडक्ट से लाखों करोड़ों की कंपनी बनाई जा चुकी है, जिसका एग्जांपल अब मुझे मिल चुका है, तो मैं आपको अभी स्लाइड पे दिखाऊं। सिंगल प्रोडक्ट से सिंपल प्रॉब्लम थी और उसका सॉल्यूशन आपने देखा। आइए चलिए और देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल, एक बहुत ही सिंपल सी चीज हम लोग रेगुलरली अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। कार में आप लोग जब भी बैठोगे, कार चला रहे हैं, अक्सर कोई सामान गिरा तो उसे उठाना पड़ता है। कार में एक जगह होती है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है अगर वहां सामान गिर जाए। कौन सी? दोनों सीट्स के बराबर वाली जो जगह होती है, अगर वहां गिर गया तो अब आपको हाथ डाल करके उसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली, ठीक है। एक स्टूडेंट ने, आपका नाम बेटा? स्वाति। स्वाति ने सोचा कि सर एक काम करते हैं, एक छोटा सा, स्वाति के दिमाग में लेटेस्ट से थर्मोकॉल आया, वरना बहुत अच्छे अच्छे भी प्रोडक्ट्स होते हैं। स्वाति ने कहा सर थर्मोकॉल का मैं एक कटिंग बना देती हूं, जो हम लोग दोनों सीट्स के बीच में रख देंगे, कुछ भी सामान गिरेगा उसमें कलेक्ट हो जाएगा। सिंपल। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, इस एक प्रोडक्ट से $multi-billion इंडस्ट्री खड़ी करी गई है, सिंगल प्रोडक्ट के साथ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मेरे पार्टिसिपेंट्स यहां पर फीमेल बहुत हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आप अभी चाहे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक लेडी थी, सारा ब्लेकली, क्या नाम था? सारा ब्लेकली, यूनाइटेड स्टेट्स की ये थी। ये सेल्स वुमेन थी, ये कैमरा बेचा करती थी, ठीक है। ये कैमरा बेचते बेचते इन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पता था। ऑफ कोर्स यूएस में अवेयरनेस ज्यादा है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने कपड़े वो खुद डिजाइन किया करती थी। अब वो थोड़ी सी हेल्दी थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसी फिटिंग तैयार करी जिसकी वजह से वो थोड़ी सी पतली लगने लगी। एक होता है बल्कि, और वो थोड़ी सी पतली लगने लगी। आप यकीन मानिए, उस इंटरनल डिजाइन को प्रोटेक्ट करा के आज की तारीख में शी इज अमर्स ऑफ द वर्ल्ड। उनकी कंपनी का नाम है स्पैंक्स, SPHANX। आप अभी लिखना चाहें या गूगल करना चाहें कर सकते हैं।
उस एक सिंगल प्रोडक्ट से आज की तारीख में उनकी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है स्पैंक्स, SPHANX। ठीक है, उन्होंने खुद उसे प्रोटेक्ट कराया, खुद उसे मार्केट करा और आज की तारीख में उनकी ये कंपनी। मैं ये एग्जांपल्स आपको क्यों बता रहा हूं? ये एग्जांपल समझ के आपको ये चीज समझ में आ जाए कि यार ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में हमने आज तक नहीं सुना था। हमने आज तक किन चीजों के बारे में सुना था? अपनी क्लासेस है, आना है, पढ़ना है, नंबर अच्छे लाने हैं, नंबर अच्छे आएंगे तो क्लास में नंबर आएंगे, क्लास में नंबर अच्छे आएंगे तो कोई कंपनी आ जाएगी, कंपनी आ जाएगी तो वो हमें हायर कर लेगी, हायर करके हमें नौकरी मिल जाएगी, फिर हम ग्रो करते चले जाएंगे। यही रास्ता हमने जाना है। बोलो बात सही है? सिर्फ यही रास्ता नहीं है। आज ऊपर से नीचे एजुकेशन इस तरीके से फ्लो हो रही है कि आपके प्रोफेसर ये जान चुके हैं कि बच्चों को अब ये दूसरा रास्ता बताने का वक्त आ गया है। ये कौन सा रास्ता है? ये ऐसा रास्ता है जिसमें 5 या 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप मिल करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने प्रोफेसर के पास लेके आता है। प्रोफेसर उस सॉल्यूशन को दिमाग में बिठा करके उसका एक पेटेंट फाइल करते हैं और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से उसी का एक स्टार्टअप क्रिएट करके उससे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं। नीपाम जो अभी आपके सामने था, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, आप लोग को जान के हैरत होगी, इसके 2 राउंड्स हो चुके हैं। पहले राउंड में आपके ही कॉलेज में, सर पहले राउंड में हुआ था, सेकंड में, फर्स्ट राउंड में, पहले राउंड में आपके कॉलेज में एक ऑनलाइन सेशन हुआ था जिसमें अवेयरनेस दी गई थी। फर्स्ट राउंड में हमने सिर्फ अवेयरनेस पे काम किया। सेकंड राउंड में हमने थोड़ा सा बच्चों को डीप में बताना शुरू करा कि कैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और एक थर्ड राउंड में हम लोग फाइलिंग पे काम कर रहे हैं, कैसे हम लोग अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आने से पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप लोग ज्यादा बोर ना हुए, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। नंबर 1, रीड-रेस्ट, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। नंबर 1 दिख रहा है आप लोग को, रीड-रेस्ट। ठीक है, रीड-रेस्ट जो मैंने अभी आपको मैग्नेटिक क्लिप बोली थी ना, पढ़ने के लिए चश्मा रीड और उसको रेस्ट कराने के लिए क्लिप, इस प्रोडक्ट का नाम है रीड-रेस्ट। आप इसे जाके गूगल करेंगे और इसका रेवेन्यू देखेंगे कि 1 साल का ये कितना पैसा कमाते हैं, तो आप लोग हैरत मान जाएंगे कि एक छोटी सी क्लिप इतना पैसा कमा सकती है। Solution to a problem is known as invention. Solution to a problem is known as invention. हम लोग ये सोचते हैं सर हम इन्वेंशन कहां बना पाएंगे? सर अगर आपके पास प्रॉब्लम है ना और उसका सोल्यूशन है, बस वही इन्वेंशन। नंबर 2, ड्रॉप स्टॉप। ये बड़े इंटरेस्टिंग था। ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है। आप लोग वाईफाई के बारे में जानते हैं, आप लोग कैमरे के बारे में जानते हैं। हम लोगों के घर में कोई भी आता है तो हम अंदर से आवाज क्या देते हैं? कौन है? राइट? क्यों ना कुछ ऐसा माध्यम हो कि हम घर में बैठे बैठे ये जान जाएं कि दरवाजे पे कौन है। आज के कैमरे और वाईफाई के जमाने में भी इस प्रॉब्लम के बारे में कोई सोच नहीं पाया, और जब सोचा गया तो प्रोडक्ट तैयार करा गया ड्रॉप स्टॉप। इसमें करा कुछ नहीं गया, दरवाजे के ऊपर एक प्रोडक्ट लगा दिया गया जिसमें एक कैमरा फिटेड था और वो कैमरा वाईफाई से कनेक्टेड था। जैसे ही बेल दबाई जाती थी, उसी में बेल थी, जैसे ही बेल दबाई जाती थी वो कैमरा फोटो खींच करके आपके मोबाइल पे भेज देता और आपको दिखा देता है आपके घर में ये गेस्ट आए हुए हैं। सिंपल है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यूनाइटेड स्टेट्स के शार्क टैंक में जब ये प्रोडक्ट लेकर के उसका बंदा आया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया, उसे फंडिंग नहीं मिली। 5 साल के अंदर अंदर उस कंपनी को वन ऑफ द बेस्ट कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स की बना करके शार्क टैंक का जज बन के वापस आता है उसी कंपनी का मालिक। दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। ठीक है, वही बताना मेरा आपका काम है कि हम लोग इसे कैसे करेंगे। देन कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लिए हैं। सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज का स्पंदन। बीपी नापना आजकल बहुत जरूरी है, बीपी के इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हमारे इंडिया में एक बहुत ही सस्ता और अच्छा सोल्यूशन बनाया गया है स्पंदन। इसमें आप मोबाइल से एक डिवाइस कनेक्ट करके अपना बीपी नाप सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एल्टोर। हेलमेट्स लगाना बहुत जरूरी है, हम जानते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई
हादसा हो जाए तो उसे प्रोटेक्ट कैसे करना है, इंसान को प्रोटेक्ट कैसे करना है, सही आदमी तक खबर कैसे पहुंचानी है। एक ऐसा हेलमेट बनाया गया जिसमें आपके ऐसे डिवाइस फिट करे गए कि सही वक्त में मदद को बुलाया जा सके। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैं आपको क्यों दे रहा हूं, जिससे आप जान सकें कि यार ये इतने भी टफ नहीं थे सोचना। एक हेलमेट है, हेलमेट के अंदर हमने कोई चीज लगा दी, एक नया इन्वेंशन बन गया। अब हम लोग अगले सत्र में, जो सेशन का अगला पार्ट है, उसमें आपसे प्रॉब्लम्स लेंगे, क्योंकि ये वर्कशॉप है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्कशॉप एंड अ लेक्चर? लेक्चर में मैं आया दिल्ली से, मैंने बोला, 4 लोगों ने सुना, 4 सो गए, डजंट मैटर्स। लेकिन वर्कशॉप का मतलब यह होता है कि आपको दिमाग दौड़ाने पे मैंने मजबूर किया, चाहे थोड़ी सी देर के लिए। दैट इज नोन एज वर्कशॉप। वर्कशॉप में जरूरी नहीं होता कि मशीनरी हो और पत्थर काटा जा रहा हो, ऐसी जरूरत नहीं है। सब कुछ दिमाग से होता है। ठीक है, आइए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए थे। ये वो क्लिप है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, चश्मा लगाने के लिए। ये देखिए, 2 सीट्स के बीच में एक छोटा सा आइटम फिक्स किया गया है जिससे कि कोई सामान गिरे नहीं। इससे भी एक इंडस्ट्री खड़ी करी गई है। ये देखिए, बीपी मेजर करने के लिए, और ये देखिए एक हेलमेट के अंदर मल्टीपल चीजें फिट करने के लिए। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसे बनाया है। आज आपके सामने ये एग्जांपल्स मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सेशन के माध्यम से अगर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड हो गया और एक सोल्यूशन लेके आ गया किसी प्रॉब्लम का, तो मेरा दिल्ली से यहां आना सक्सेसफुल हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस कॉलेज। जब प्रोफेसर्स की बात आएगी, उनसे मैं दूसरी चीज डिमांड करूंगा, उनसे मैं दूसरी चीज एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन आप लोगों से सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन है मेरी। ठीक है, आइए अब करते हैं वर्कशॉप। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने चारों तरफ एग्जिस्ट करने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए। प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में बहुत सारी। सड़क पर निकले ट्रैफिक का प्रॉब्लम, नॉर्मल अपने अपैरल में देख लीजिए, जूता पहने हैं, जूता फट गया या उसमें कोई डैमेज हो गया, उसका प्रॉब्लम। मैं चाहता हूं आप लोग हर तरीके की जो आपकी चारों तरफ प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचें, और इन प्रॉब्लम्स के फिर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं। बॉयज विल थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, गर्ल्स विल थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, देन गर्ल्स विल थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम एंड बॉयज विल गिव अ सॉल्यूशन। सिंपल। चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं। आपस में सोचिए कोई प्रॉब्लम। जब तक आप सोच रहे होंगे, मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसलिए नहीं कि आप वो प्रॉब्लम मुझे बताएं, इसलिए कि सोचना कैसे है मैं उसमें मदद करूंगा। आप लोग सोचिए प्रॉब्लम्स के बारे में, मैं कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूं। जब मैं गया था एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज ही था गालिबन, लखनऊ का, वहां पे एक बच्चे ने खड़े होकर के कहा, सर कोहरे में जब गाड़ियां चलाते हैं तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर दूसरे ग्रुप ने सॉल्यूशन दिया था। सॉल्यूशन की मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 2, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम्स बता रहा हूं आपको। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जब चली जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। क्यों ना हम कुछ ऐसा कर लें कि हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लें और जब लाइट चली जाए तो हम उसे यूज कर सकें। इसका सॉल्यूशन सबको पता है, इन्वर्टर, राइट। ऐसी प्रॉब्लम सोचनी है अपनी चारों तरफ। हमारे चारों तरफ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। दोनों ग्रुप्स को एक एक प्रॉब्लम सोचनी है, ज्यादा भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चाहे रोडवेज हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। थिंक अबाउट इट। वी हैव इनफ टाइम। मैं आज पूरे दिन के लिए यहां पे आया हुआ हूं, हमारे पास बहुत वक्त है। वेरी गुड। अपना नाम बताएं। हाँ, अजीत जी। जी बिल्कुल बताएं। हाँ, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अजीत।
अजीत ने एक प्रॉब्लम बताई, सर हमारे घर में एक टैंक है, हालांकि इसका सोल्यूशन एग्जिस्टिंग है, अब हम इसे जानेंगे। अजीत ने कहा सर हमारे घर में टैंक है, पानी भर जाता है, पूरा मोहल्ला आता है बताने भैया तुम्हारा टैंक भर गया, राइट? ठीक है, समरसेबल होंगे इस एरियाज में, समरसेबल भर जाता है, सारी नालियां साफ हो जाती है मोहल्ले की, राइट? तो इसको नोटिफाई करने के लिए, बताने के लिए हमें एक सोल्यूशन चाहिए, राइट? अब आप लोगों को सोल्यूशन पता भी होगा। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सर अगर हमारी प्रॉब्लम बड़ी फ्रिवलेस है जिसका सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तब क्या करें? जैसे कि मैं लड़कियों से पूछूं इसका सोल्यूशन क्या है, आप बताइए। अलार्म, सर इसका तो अलार्म एग्जिस्टिंग है। यही बात समझने की है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्टिंग है तो वहां संभल के आपको नहीं बैठना है, वहां रुक के आपको नहीं बैठना है, क्योंकि अगर आप वहां रुक के बैठ गए होती मैम, तो ये जो टीवी आज की तारीख में आपको टच स्क्रीन दिख रहा है, जब ये टच स्क्रीन नहीं था और लोग ये समझ के बैठ जाते कि अब इससे अच्छी स्क्रीन नहीं बन सकती, तो शायद टच स्क्रीन इस दुनिया में नहीं आई होती। आज टच स्क्रीन यहां मौजूद है और कुछ लोग हैं आप जैसे जो सोच रहे हैं इसे भी और बेटर कैसे कर सकते हैं, तभी इसका नया वर्जन यहां पे मौजूद होगा। अब अलार्म तो मौजूद है, लेकिन उस अलार्म में क्या कमियां हैं? अगर हम उसे रिमूव करके एक नया प्रोडक्ट बना दे तो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाए। बात समझ में आ गई? दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट सोल्यूशन। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं, गर्ल्स के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी आ गई, अभी इन पे भी आएगी। अभी जो हमारे अलार्म्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, मैं भी थोड़ी हेल्प करूंगा। मैं बता दूं, मैं इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आता हूं, मुझे भी ऑन द स्पॉट मिलती है प्रॉब्लम्स, ऑन द स्पॉट डिस्कशन होता है। एक तो प्रॉब्लम यह होती है कि हमेशा डिटेक्ट नहीं कर पाता, नंबर 1। दूसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट होता है, बिजली नहीं है। नंबर 2, हाँ सोचिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बताइए, नहीं सोचिए नहीं मतलब बताइए आराम से। हाँ अपने आप कट हो जाए, वेरी गुड, अलार्म बेल की जरूरत ही नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कि भाई आवाज लगा के बताने की ही क्यों जरूरत है? अगर पता चल गया है कि भर गई है तो कट लगा दो, बंद कर दो मशीन, वेरी गुड। एक और प्रॉब्लम, इन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे दिया। हम अभी क्या कर रहे थे, पहले प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है हमें, लेकिन उस सॉल्यूशंस के क्या प्रॉब्लम्स हैं, बात समझ में आ रही है? उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करा और प्रॉब्लम्स के बात करने के बाद में उसका एक सॉल्यूशन दे दिया। अब चीजें टफ ना हो आपके लिए तो मैं उसे सिंप्लीफाई कर देता हूं। आपका काम मेरे जाने के बाद में यही होगा। अभी इसे हम एक बार और रिपीट करेंगे, गर्ल्स से क्वेश्चन लेके इधर लाने के लिए, मगर आप प्रोसेस समझ लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर 1, आपके ग्रुप में बैठा एक शख्स प्रॉब्लम बोलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम, दूसरा शख्स सॉल्यूशन बोलेगा जो सबको पता होगा कि हाँ भाई ये सॉल्यूशन, फिर सब मिलकर के उन सॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स निकालेंगे। जैसे कि एक प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब टैंक भर जाएगा तो वो बोलता तो रहता है, लेकिन अगर उसे कोई सुनने वाला नहीं है तो वो फिर भी पानी बहता रहेगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो जो वहां से डायरेक्टली समरसेबल को कनेक्शन भेजे और उसे बंद कर दे, राइट? और जैसे ही आप ऐसे एक सॉल्यूशन पे आएंगे, आपके पास आपका एक नया प्रोडक्ट मौजूद होगा। और अगर आपको दिखेगा कि नहीं ऐसा भी मौजूद है, तो आपको अप्लाई करनी है इसरो टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? इसरो टेक्नोलॉजी। कितने लोगों ने इसरो का नाम सुना है? सबने सुना है। चलिए आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसरो के बारे में बताता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो प्रोफेसर पढ़ाते हैं जिन्हें एजुकेशन से मोहब्बत होती है, वैसे ही इसरो में वो साइंटिस्ट काम करते हैं जिन्हें देश से मोहब्बत होती है। साइंटिस्ट एक ऐसी पोस्ट होती है जो अगर आप इंडिया से बाहर जाकर के बन जाएं तो आपको अंदाजा नहीं है कि आप कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्हें बहुत ऑफर्स, परमाणु मूवी देखी है आप लोगों ने? हमारे देश में जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी उसकी मूवी देखी है आपने, राइट? उसे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कैसे कैसे साइंटिस्ट मौजूद हैं जिन्हें बहुत ऑफर्स बाहर से मिले हैं, लेकिन वो देश के लिए काम करते हैं।
अब सुनिएगा, इसरो और नासा का कंपटीशन बहुत अलग है। उनके पास बहुत पैसा है, इनके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन मंगलयान मिशन अगर आप देखें तो उसमें आपको देख के पता चलेगा कि मार्स तक पहुंचने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करी है इंडिया ने, वो सेम है जो कि नासा यूज करता। मगर डिफरेंस ये है सर कि अगर उन्होंने उसी चीज को 500 करोड़ में करके दिखाया है तो हमने उसी चीज को 100 करोड़ में करके दिखाया है। यहां पर जब आप एक सोल्यूशन बना लें और आपको दिखे कि भैया ये तो ऑलरेडी मार्केट में 5,000 रुपए का बिक रहा है, आपका काम बस इतना होगा इसी प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करके 1,000 रुपए में लेकर के आना और हमारा नया प्रोडक्ट तैयार। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में इसी का जवाब दे दूं। हमारे देश में इन्वेंशन किसे कहा जाता है? हमारे देश में इन्वेंशन कहा जाता है एनीथिंग हैविंग टेक्निकल एडवांसमेंट नंबर 1 और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नंबर 2 और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। या तो आपने कुछ ऐसा सोल्यूशन सोच लिया जो किसी ने सोचा नहीं था, नंबर 1, और अगर सोचा हुआ है भी आपने उसे इकोनॉमिकली चीपर बना दिया है, तब भी वो इन्वेंशन का दर्जा रखता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए एक बार और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। आप लोग प्रॉब्लम सोचेंगे, आप लोग सोल्यूशन सोचेंगे, फिर सोल्यूशन की प्रॉब्लम सोचेंगे। प्रोसेस पता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और प्रॉब्लम गर्ल्स के साइड से मैं लेना चाहूंगा। ठीक है, कोई भी अपने चारों तरफ जो प्रॉब्लम चल रही हैं, गर्ल्स की तो सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में सोचिए। गर्ल्स की सिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? अलर्ट सिस्टम्स, अलार्म सिस्टम्स बहुत सारे हैं। मैंने हाल फिलहाल में एक पेटेंट फाइल किया है ईव टीजिंग के लिए, वो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, वो सोचिए। यस श्योर, अपना नाम बताएं। हाँ, सोहालिया, ओके, यस। हाँ, राइट राइट, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी नाइस। इन फैक्ट ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस प्रॉब्लम। बच्ची ने बहुत अच्छा सोचा है। आजकल हमारे देश में यूथ के सुसाइड के केसेस बहुत हाई। इनफैक्ट नॉट ओनली यूथ के साथ साथ आजकल वर्किंग एम्प्लॉइज के भी सुसाइड के केसेस आने लगे हैं। आपकी बात को थोड़ा सा रोक करके यहां पर मैं एक बात सबसे कहना चाहूंगा कि देखो, जिंदगी में काम करना है, काम में जिंदगी नहीं बितानी है। आपका जो भी काम है वो कभी आपकी जिंदगी के ऊपर नहीं होना चाहिए। हाल फिलहाल में ये चीज देखी गई है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। एक वॉलंटियर आप पकड़ लें, जैसे ही कोई होगा तो उनको आप फौरन रेगुलेट करना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं लेके अभी आऊंगा। लेकिन यहां पर एक चीज आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कल को जॉब करने वाले हैं और आप अभी स्टूडेंट्स हैं। हमारे देश में स्टूडेंट सुसाइड और एम्प्लॉय सुसाइड बहुत बढ़ रहे हैं। पहले एम्प्लॉय सुसाइड की बात कर लूं आपसे। काम को काम तक रखा जाए, अपनी लाइफ के ऊपर ना आने दिया जाए। लाइफ के ऊपर वो तभी आता है जब आप उस इन्वॉल्वमेंट के, जो भी सैलरी जिसे भी कहा जाता है, उसके प्रेशर में इतना दब गए होते हैं कि अब आप उस चीज से बाहर नहीं आ सकते। राइट? यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और रखी गई है कि सर अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसके सामने बेइज्जती के और हमारी सोसाइटी में जो एक बना दिया गया है कि अशेम फील करने के कोई और रास्ता नहीं होता। हद यह है कि हम लोग, एक्सक्यूज मी, हेलो सर, हाँ मैं एक सेशन में हूं। ओके ओके ठीक है। तो उसके पास सिवाय सुसाइड के कोई रास्ता नहीं होता। इन्होंने कहा सर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है, हम उसे मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, हम उसे सुसाइड से कैसे। नाउ अलोंग विद बीइंग दिस क्वेश्चन, अलोंग विद बीइंग सोशल,
ये प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, लेकिन क्या इसका कोई टेक्निकल सॉल्यूशन हो सकता है? अब यह काम है लड़कों का सोचना। अगर आपके किसी दोस्त को खुदा ना खास्ता ऐसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, वो डिप्रेस्ड है, ऑफ कोर्स आप लोग तो हैं उसे मोटिवेट करने के लिए, इसे कहेंगे सोशल सॉल्यूशन। सोशल सॉल्यूशन क्या होगा? अरे भाई तुम लोग दोस्त हो, बात किया करो, मोटिवेट किया करो, यह है सोशल सॉल्यूशन। हम बात करने आए हैं टेक्निकल सॉल्यूशन की। क्या टेक्निकल सॉल्यूशन मौजूद है? सोचिए आराम से बैठ करके। टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर के हम स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? अपना नाम बताएं पहले। विवेक जी, विवेक बताएं। अभी देखा गया है कि बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हमारे मेंटल प्रेशर को नापते हैं, और सर ऐसी जो हमारे दिमाग में हम बता नहीं सकते कि हम, मतलब जो पर्सन खुद सबको बातें बता नहीं सकता, पर वो जैसे नार्को टेस्ट है कि जो सच को बताता है, हमारे दिमाग की बहुत सी चीजों को ऐसे जो हम पर्सन खुद नहीं बताना चाहता, फिर भी वो चीजें हमारे दिमाग से बताई जा सकती है, तो वहां से वो चीज गैस करी जा सकती है। हाँ, हालांकि जैसे नार्को टेस्ट हर किसी का पॉसिबल नहीं है, तो पर हम इस तरीके से उसको पता कर सकते हैं कि वो उसके अंदर परेशानी है या क्या दिक्कतें हैं, हमारे पता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये बताया कि सर आज की तारीख में ऑफ कोर्स एक स्टूडेंट है तो इसको इस चीज की नॉलेज नहीं होगी कि कौन सी मशीन है, लेकिन उसे इतना पता है कि सर जरूर एक मशीन ऐसी होगी जो जैसे हमारी बीपी नापा जाता है वैसे ही हमारे मेंटल स्टेट को नाप सके। अगर ऐसी कोई मशीन है तो हम लोग उससे यह देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की जिस तरीके से रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करी जा रही, सोचिए अगर वैसे ही उनकी मेंटल स्टेट मॉनिटरिंग डेली करी जाए तो चीजें कितनी अलग होंगी, राइट? एक ऐसी मशीन जो कि मेंटल स्टेट डिटेक्ट करे, उस पर स्कोर कार्ड तैयार करे, लेटर से 100 में से हमें नंबर्स दे। अगर हमें 80 और 90 नंबर्स मिल रहे हैं, नो इश्यूज, हम मस्त हैं, जिंदगी में बहुत खुश हैं। एक एरिया में है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड है एग्जाम्स की वजह से, चीजों को लेकर के, खुदा ना खास्ता अगर स्कोर 10 या 20 के बीच में आ रहा है, कुछ है जो स्टूडेंट को परेशान कर रहा है, एंड ही और शी नीड्स इमीडिएट अटेंशन। सही है? अब यहां पे सवाल उठा, सर सारी बात तो कर ली, ऐसी मशीन होगी कहां, ऐसी मशीन बनेगी कैसे, राइट? अब काम आता है गूगल। हमारा काम क्या होगा? मेंटल स्टेट चेकिंग मशीन हम गूगल पे डालेंगे, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ऑफ कोर्स आप स्टूडेंट से शायद एक पॉइंट पे फंस जाएंगे, आपके प्रोफेसर यहां पे मौजूद है जिन्हें पता है रिसर्च पेपर कैसे पढ़ा जाता है, वो आपको हेल्प करेंगे, इसे पढ़ो, इसमें मिल सकता है। आप पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा कि भाई ऐसी मशीन एग्जिस्टिंग है। अब हमारा काम क्या है? अगर मेंटल मशीन है एग्जिस्टिंग तो क्या हम रुक जाएंगे? नहीं, मशीन एग्जिस्टिंग है मगर पता किसको है? अरे 100 बच्चे यहां मौजूद हैं, इन्हें नहीं पता है। हम उसी मशीन को उठाएंगे, उसे सस्ते में बनाएंगे और उसे कॉलेज में ले जाकर के प्रधानाचार्य महोदय के सामने रख देंगे कि सर हमारा बिजनेस मॉडल बड़ा सस्ता सा है, हम ये मशीन देंगे, एक कैंप लगाएंगे, बच्चों को हफ्ते में एक बार नापा जाएगा, अगर सर किसी की भी वो कम आएगी हम उसकी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करेंगे, उसके बदले में आपसे एक छोटा सा प्राइस हम आपसे चार्ज करेंगे। बिजनेस मॉडल तैयार, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से बिजनेस तैयार। बात समझ में आ गई? अब आज जब मैं आपके बीच में से चला जाऊंगा तो मेरी रिक्वेस्ट प्रोफेसर के साथ साथ आप लोगों के साथ ये होगी कि आप लोग 5-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लें, ऐसी प्रॉब्लम सोचें, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद भी सोचें और नेट पे भी ढूंढें, और ढूंढने के बाद में जो प्रोडक्ट आपके सामने आए उसे अपने प्रोफेसर से डिस्कस करें। अगर उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल देखा जाएगा तो मैं अपने पर्सनल लेवल पे कोई बात नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार हर साल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स कराता है। क्या कराता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स। इन अवार्ड्स में आपके प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का और वहां पे प्राइज जीतने का मौका
भारत सरकार देती है। यह सिर्फ प्राइस नहीं होता कि आपको मेडल दे दिया, आप घर में जाके इसे टांग लीजिए। वहां से आपके प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज कैसे करना है, उससे कंपनी कैसे सेटअप करनी है, उससे कमाना कैसे है, हर तरीके की गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, सो हमारे आज के सेशन का पहला भाग कंप्लीट हो गया, जिसे हम वर्कशॉप भाग कहते हैं। अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बचा है। जनरली यह देखा गया है कि पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मेरा यह मानना है कि सेशन के शुरुआत में बच्चे फ्रेश होते हैं, उन्हें जो बता दो वो उनके दिमाग में ठहर जाता है, लेकिन सेशन के एंड में सिवाय नींद के बहुत कुछ नहीं बचता है। इसलिए थ्योरेटिकल चीजें जो कि स्लाइड्स के फॉर्म में है, ये आपको मिल जाएंगी। संजीव सर के पास स्लाइड्स मौजूद है, ये ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप उससे पढ़ सकते हैं। मेरा काम स्लाइड से देख करके बोलना ही है बस। लेकिन ये जो बातें मैंने आप तक अभी पहुंचा दी, ये बातें आपके साथ रुक जाएंगी, आपके साथ ठहर जाएंगी, एंड आप प्रोडक्ट का सोल्यूशन सोचना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, उसे कंपनी में कैसे कन्वर्ट करना है, फंडिंग कहां से आएगी, सारा सेटअप का सोल्यूशन मैं हूं, वो बताना मेरा काम है। आपका जितना काम है आप अगर उतना कर ले तो आगे हेल्प करने के लिए मैं मौजूद हूं। एंड बिलीव मी, आपकी कहानी इकबाल जैसी नहीं होगी। अगर आपका बनाया हुआ है तो यह माध्यम ऐसा है कि जहां से चीजें प्रोटेक्ट होंगी, आपके राइट छीने नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर मैं कोई प्राइवेट बॉडी होता तो शायद यह कहा जा सकता था, आई एम टॉकिंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो आपको इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा आइडिया कहीं कॉपी ना हो जाए, राइट। विद दीज वर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ द सेशन एंड वी विल ट्राई टू रैप इट अप फॉर द क्वेश्चन आवर राउंड। आई होप आपको अभी तक अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, राइट। समझ में आ रहा है, यस और नो? वो अभी सबने बताया था कि जीडीसी वाली आवाज है, एक बार उसमें बता दो यस और नो। ओके, नाइस। कुछ स्लाइड पे लिखा हुआ है, पढ़ लें इसको। रिमेंबर, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई हमारी प्रॉब्लम क्या है। नंबर 2, रिसर्च द मार्केट। मार्केट रिसर्च करिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम या उसका सोल्यूशन है मार्केट में। नंबर 3, प्रोटेक्ट योर आइडिया। अपने आइडिया को प्रोटेक्ट कराइए, पेटेंट कराइए, कॉपीराइट कराइए, जो भी माध्यम है उसे प्रोटेक्ट कराइए। नंबर 3, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान। एक बिजनेस प्लान बनाइए कि हम लोग किस तरीके से अपने बिजनेस को बनाएंगे। अगर इसमें आप लोगों को हेल्प की जरूरत लगेगी तो आपके प्रोफेसर्स और हम यहां पे मौजूद हैं। नंबर 5, बी पर्सिस्टेंट। एक कविता थी, अब एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे नहीं याद आ रहे उसके, लेकिन हाँ लास्ट लाइन याद आ रही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई भी चीज रातों रात नहीं होगी, आपको रेगुलर कोशिश करनी पड़ेगी। एक चीज स्टार्ट करेंगे नई वर्क करेगी, दूसरी चीज स्टार्ट करेंगे नई वर्क करेगी, मगर एक भी चीज काम कर जाएगी तो यू विल बी हैविंग अ बिजनेस ऑफ योर ओन। ठीक है, चलिए अब आप, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो बातें मैं आज आपसे कर रहा हूं, आज तक आपकी लाइफ में कभी ये बातें आपसे करी गई? इसीलिए ये एक अवेयरनेस मिशन है, इसीलिए ये एक अवेयरनेस सेशन। अवेयरनेस उस चीज की दी जाती है जिसे सुनकर ये लगे कि यार ये कौन सी दुनिया थी जिसके बारे में हमें नहीं पता। एंड दैट इज व्हाई दिस अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा चलिए अब जल्दी जल्दी एक एक करके सारी चीजें जान लीजिए। नोट करना चाहे नोट कर लें, थ्योरी की क्लास शुरू होने जा रही। ठीक है, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? हमारे दिमाग से निकलने वाली किसी भी चीज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। हाँ, आप लोग कॉपी पेन पे नोट करना चाहे नोट कर लें, वरना ये स्लाइड्स आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, स्लाइड्स भी आप ले सकते हैं। हाँ, ये बात है, लिखी हुई चीज याद रहती। जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तब हमने ये चीज आदत बनाई थी कि भाई जो भी चीज है उसे लिख लो, भले ही हमारे पास वो अवेलेबल है, लिख करके चीजें याद रहती, वो आपके साथ में ठहर जाती।
और क्योंकि अब ये सेशन का आखिरी भाग है, आपको भूख भी लगने लगी होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम बोर करूं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारे दिमाग से प्रोड्यूस होने वाली किसी भी चीज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। हमने कोई कविता लिखी है, वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमने कोई कहानी लिखी है, वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमने कोई इन्वेंशन बनाया है। व्हाट इज इन्वेंशन? अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज नोन एज इन्वेंशन। अभी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन करके दिखाया ना, उसी को इन्वेंशन कहते हैं। वो जो अलार्म सिस्टम हम बना रहे थे, उसे इन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत टाइप की होती हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। यह स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के बाद, आज के सेशन के बाद, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मुझे कहता हुआ नजर आए कि सर मैंने फला पोयम को पेटेंट करा लिया, या मैंने फला पिक्चर को कॉपीराइट करा लिया है या डिजाइन करा लिया है। नहीं, ये सब अलग अलग है। कैसे कैसे अलग हैं पढ़ लीजिए, मैं क्लास में पूछ भी लूंगा अभी। ठीक है, आइए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नंबर 1, पेटेंट्स। पेटेंट्स के आगे लिख लीजिएगा इन्वेंशन। पेटेंट्स के आगे लिख लीजिए इन्वेंशन। आज से पेटेंट्स के बारे में तभी बात करेंगे आप जब बात हो रही होगी इन्वेंशन के बारे में। इसको छोड़ के किसी के भी बारे में बात हो तो प्लीज पेटेंट्स वर्ड का इस्तेमाल मत करिएगा। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है, मैंने फला वीडियो को पेटेंट करा लिया, मैंने फला पोएम को पेटेंट करा लिया, फला ड्राइंग को पेटेंट करा लिया। नहीं, पेटेंट इज ओनली रिलेटेड टू इन्वेंशन। एंड व्हाट इज इन्वेंशन? सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज नोन एज इन्वेंशन। नंबर 2, डिजाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिजाइन, ये पॉइंटर है शायद पढ़ाने के लिए, ये पॉइंटर है। स्वाति यहां पे मौजूद थी, राइट? स्वाति, लेट अस से अभी एक ही ऐसे बैठे हुए स्वाति के ग्रुप में सब लोगों ने डिसाइड करा कि चलो यार प्रॉब्लम सोचते हैं। तो स्वाति के ग्रुप में किसी ने कहा कि सर जब पढ़ा रहे थे तो उन्हें अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, क्यों ना मैं ऐसा बीम बनाए जिससे वो उस तरीके से पढ़ा सके। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम के साथ में उसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन क्या ये अभी रियल में एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। जब ये रियल में एग्जिस्ट करेगा तो उसका एक डिजाइन होगा, उसका एक फॉर्म एंड फीचर होगा, उसकी लेंथ होगी, उसकी ब्रेथ होगी, उसकी हाइट होगी। उसी डिजाइन को प्रोटेक्ट कराया जाता है अंडर डिजाइन रजिस्ट्रेशन। अंडर डिजाइन रजिस्ट्रेशन, यहां पे लिख लीजिए डिजाइन के आगे, डिजाइन रजिस्ट्रेशन। आज से कभी भी आपसे पूछा जाए डिजाइन की बात आप कब करेंगे, आप कहेंगे हम डिजाइन की बात तब करेंगे जब इन्वेंशन के फॉर्म एंड फीचर की बात करी जाएगी। किसके बारे में? इन्वेंशन के फॉर्म एंड फीचर। मतलब हमने कोई अलार्म बना लिया अपने दिमाग में, अभी अभी हम लोगों ने एक अलार्म बनाया था, लेकिन जब वो इस दुनिया में आएगा तो उसका एक कलर होगा, उसका एक साइज होगा, उसका एक शेप होगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, राइट? उसे कहा जाता है डिजाइन रजिस्ट्रेशन। क्या कहा जाता है? पेटेंट्स किसके लिए यूज होते हैं? डिजाइन किसके लिए यूज होते हैं? फॉर्म एंड फीचर ऑफ इन्वेंशन। याद रहेगा? वेरी गुड। आते हैं अगले पे, ट्रेडमार्क। मैं एकदम मतलब ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे मैं खुद एक टीचर हूं। अच्छा, मैं टीचर रह भी चुका हूं। ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। ठीक है, मुझे टीचिंग से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन यह था कि तो मुझे टीचिंग बहुत पसंद थी, लेकिन यह था कि यह बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में टीचर्स को वो वैल्यू नहीं मिलती है जो वैल्यू मिलनी चाहिए। इसलिए बहुत सारे टीचर्स जो टीचर्स बन सकते हैं वो अपना करियर स्विच करके कहीं और चले जाते हैं, और मैं कहीं और आ गया। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर हो गया, और अब मैं उस विभाग में आ गया हूं, मेरे ऑफिस के विभाग में, जहां पे टीचिंग करनी होती है। तो अल्टीमेटली अब मैं टीचिंग भी कर रहा हूं और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूं। सो एनीवेज, कमिंग ऑन टू ट्रेडमार्क्स। द नेम, लोगो, सिंबल और आइडेंटिटी ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। ये दरवाजा पीछे का जो है ना, आप लोगों को जिनको जाना है वो चले जाएं और एक बार के लिए रोक दें, क्योंकि वो कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बार बार बीच में। जिसको जाना है वो जा सकता है, और किसी को जाना है
एनीवन? मतलब मुझसे तो नहीं बोल पाओगे, जाहिर सी बात है, अगर जाना है तो नहीं, बट ये है कि आई विल बी रैपिंग अप द सेशन वेरी सून, ठीक है? हाँ, सो ट्राई टू ग्रास्प इट एज मच एज पॉसिबल। और हम लोग कनेक्ट में हैं। एट द एंड ऑफ द स्लाइड मेरे डिटेल्स भी मौजूद हैं, बाकी संजीव सर यहां मौजूद हैं। जो कंफर्टेबल है वो संजीव सर से बात करें, मैम से बात करें, और अगर नहीं कंफर्टेबल है डायरेक्टली मेरा मोबाइल नंबर अवेलेबल है, ये ऑफ कोर्स मेरा ऑफिस मोबाइल नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है ये, राइट? तो आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एनीवेज, ट्रेडमार्क, किसी भी इंस्टीट्यूट की पहचान को ट्रेडमार्क कहते हैं। मैंने कंपनी नहीं बोला, किसी भी इंस्टीट्यूट, मतलब आपका ये कॉलेज है ना, इस कॉलेज का जो लोगो होगा वो इसकी पहचान है, इसका जो टाइटल होगा वो भी इसकी पहचान है। पहचान को प्रोटेक्ट करने का नाम ट्रेडमार्क होता है। इसका इन्वेंशन से लेना देना नहीं होता, इसका डिजाइन से लेना देना नहीं होता। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कोका कोला की बोतल है, इसमें जो नाम है कोका कोला, जो लिखने का तरीका है कोका कोला, ये सारा का सारा क्या है? ट्रेडमार्क। लेकिन जो बोतल का डिजाइन है वो डिजाइन रजिस्ट्रेशन। समझ में आ गई बात? आइए अगले पे आते। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमारे देश के लिए बहुत जरूरी चीज है। हमारा देश सभ्यताओं का देश है, हमारा देश पहचान का देश है, विभिन्नता में एकता का देश है। हम बहुत अलग हैं, सब के सब बहुत अलग हैं, लेकिन हम फिर भी एक हैं। उसकी वजह से होता क्या है, अलग विभिन्नताओं से नए नए प्रोडक्ट्स देश में ऐसे पैदा होते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं पाए जाते। मैं एग्जांपल लूंगा, बात समझ में आ जाएगी। बनारसी साड़ी का नाम सुना है? बहुत पुराने समय से वहां के लोकल लोग बनारस में बैठे हुए साड़ियां बना रहे हैं। उनका फॉर्म एंड फीचर एकदम यूनिक है जो पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो उन्होंने हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पर ही डाका डाला था। उन्हें यहां के कारीगरों के पास ऐसे काम मिले जो पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं मिले। इसीलिए उन्होंने यहां के जीआईज को चुरा करके अपने देशों में बेचना स्टार्ट करा और बहुत प्रॉफिट कमाया। इसीलिए जरूरी है कि आज की तारीख में जितने जीआईज हैं उन तमाम जीआईज को प्रोटेक्ट कराया जाए। चलिए कुछ जीआईज का नाम लेते हैं। बनारसी साड़ी हो गया, लखनऊ की चिकनकारी का काम होता है, दार्जिलिंग की चाय के बारे में सुना है, खादी के बारे में सुना है, कोल्हापुरी चप्पल के बारे में सुना है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में बड़ी यूनिक हैं। हाल फिलहाल में एक और होने जा रहा है, मुजफ्फरनगर में गुड़ बहुत बनता है, मुजफ्फरनगर का गुड़ जीआई होने जा रहा है। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश ने यह इनिशिएटिव लिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। नाम सुना है आपने? हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट जीआई कराया जाएगा, उसे प्रोटेक्ट कराया जाएगा और प्रोटेक्ट करा करके उसको जीआई का दर्जा देके वहां के लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रेरित किया जाएगा कि अब आप अपने आइटम को इंटरनेशनल मार्केट में खुद बेचें। राइट? इसे कहते हैं जीआई। क्या कहते हैं? जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक चिन्ह। क्या कहते हैं? भौगोलिक चिन्ह। नेक्स्ट आ गए कॉपीराइट्स पर। कॉपीराइट्स के बारे में यहां पर बैठी जनता को लगभग पता है क्योंकि आप लोग यूट्यूब चलाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा फला की वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, स्ट्राइक डाउन हो गई, ट्रिपल स्ट्राइक आ गया। सुना है सबने? इसे समझाने में यूथ को दिक्कत नहीं होती क्योंकि आप लोगों ने कॉपीराइट के बारे में सुना है, लेकिन समझना इसके बारे में है कॉपीराइट का लेना देना लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क से होता है। किससे? लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, मतलब कुछ लिखा गया है, कुछ आर्टिस्टिक करा गया है या बनाया गया है। वीडियो क्या होती है? एक आर्टिस्टिक वर्क होता है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, पूरी रिकॉर्ड हो रही है, राइट? ये एक आर्टिस्टिक वर्क है, मेरे बोलने का तरीका है जो कि रिकॉर्ड हो रहा है। इस पर मेरा राइट है और इस कॉलेज का राइट है। कॉलेज रिकॉर्ड कर रहा है, मैं बोल रहा हूं। दिस इज नोन एज द कॉपीराइट।
आज से कभी भी किसी स्टूडेंट को ना सुनूं कि मैंने फला इन्वेंशन को कॉपीराइट करा लिया। इन्वेंशन का कॉपीराइट से लेना देना नहीं होता। कॉपीराइट का लेना देना सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी आर्टिस्टिक, आपने पोएम लिखी, पेपर लिखा, ड्राइंग बनाई, कुछ भी किया, लिटरेरी आर्टिस्टिक अगर है तो वो आपका कॉपीराइट है। हद यह है कि क्रिकेट खेला जा रहा है, ब्रॉडकास्ट राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। थोड़ा सा आप बोर ना हो तो मैं आपको कहानी बता दूं। एक जमाना था जब दूरदर्शन पे मैचेस दिखाए जाते थे, दूरदर्शन को उल्टा बीसीसीआई को पैसा देना पड़ता था कि हमारे मैचेस दिखा दीजिए। आज की तारीफ है कि आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स दुनिया में फुटबॉल के बाद में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले राइट्स हैं। दूरदर्शन को दिखाने की इजाजत भी नहीं है आईपीएल को। यह है इंपॉर्टेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। एक फॉरेनर ने यह बात समझी थी कि अरे यार एक बात बताओ, क्रिकेट तुम खेल रहे हो, मेहनत तुम्हारी है, राइट तुम्हारा है, लोग देखने आ रहे हैं, तो किसी को पैसा देना क्यों है? लोगों से कहो हमें पैसा दो, लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे, हम कमाएंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रॉडकास्ट राइट्स। ब्रॉडकास्ट राइट्स किसके अंडर में आते हैं? कॉपीराइट्स, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। समझ में आ गई बात? आइए फाइनली लास्ट, यहां पर कोई वैसे होगा नहीं, फिर भी मैं पूछ लेता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है? नहीं। बचपन में वीडियो गेम्स खेले हैं? वीडियो गेम्स में हरे कलर की चिप देखी है? हरे कलर की चिप देखी है आप लोगों ने? नहीं देखी है तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा। उस हरे कलर की चिप में जो गोल्डन कलर की डिजाइन्स बनी होती हैं, अगर नहीं देखी है तो अभी गूगल कर लीजिएगा, वीडियो गेम चिप। हरे कलर की चिप में जो गोल्डन कलर की डिजाइन्स बनी होती हैं उसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। मैं ज्यादा बोर ना करते हुए इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस 1 घंटे के सेशन में मैंने आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट बता दी। एक, प्रॉब्लम के बारे में कैसे सोचते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे सोचते हैं, सोल्यूशन की प्रॉब्लम्स कैसे सोचते हैं, और उससे प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। मैंने बिजनेस वगैरह के बारे में बात नहीं करी क्योंकि ऑफ कोर्स एक सेशन में पॉसिबल नहीं है, राइट? आगे फिर कभी आना होगा तो हम लोग इसी को आगे लेकर के चलेंगे। उसी प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे उतारना है, उसी प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टर्स को अप्रोच कैसे करना है, उसी प्रोडक्ट के लिए कंपनी, छोटी छोटी सी कंपनियां कैसे बनानी है। मेरी कोशिश है, मैंने कई कॉलेजेस में आईपीआर सेल सेटअप कराए हैं, छोटे छोटे इंक्यूबेशन सेल सेटअप कराए हैं, जिसमें बच्चों की छोटी छोटी कंपनियां 20-20 हजार 30-30 हजार से स्टार्ट हुई कंपनियां, ज्यादा प्रॉफिट नहीं मगर महीने का 50-60 हजार रुपए कमा रही हैं कॉलेजेस में बैठे हुए। ऐसा पॉसिबल है। अगर आप खुद सोचिए, चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। एक प्रोडक्ट अगर यहीं पे सोच लिया जाए, और राठौर सर मौजूद है यहां पर, मेरे कांटेक्ट में है, मैंने इन्वेस्टर से बात करा दी और वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने लगा। लेटेस्ट से बदायूं के किसी लोकल उसमें हमने उसमें नेम टैग लगा करके उसे अमेजोन पे, कहीं दुकान भी नहीं खोलनी है आपको, कहां बेचना है? अमेजोन पे। हमने अमेजोन पे बेचना भी उसे शुरू कर दिया और कह दिया भैया राइट भी हमारा है, कोई खरीदेगा नहीं इसको, मतलब कोई बेचेगा नहीं इसको। 2 चीजें होंगी, एक आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा, दूसरा कोई बड़ी कंपनी की आपके ऊपर नजर पड़ेगी, वो कहेंगे ये प्रोडक्ट आप हमें दे दीजिए और अपने पेटेंट्स के राइट्स आप हमें दीजिए, हम जितने प्रोडक्ट बेचेंगे उतने प्रोडक्ट के जो भी एक प्राइस फिक्स हो जाएगा उतना प्राइस आपको देते रहेंगे। इसे कहते हैं रॉयल्टी। मैं जानता हूं यहां पे जितने लोग पैसे के बारे में सुनना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहे होंगे, लेकिन सर टाइम कम है, इसलिए मैं पैसे के बारे में आज ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूं। बस एक एग्जाम्पल से मैं क्या कोशिश करता हूं, एग्जाम्पल से बात समझाऊं। एक एग्जाम्पल से आपको बात समझा देता हूं। हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी डेलावेयर में, ये आपके नीदरलैंड्स के पास में है एक जगह। वहां ट्रेनिंग में एक बड़ी अच्छी बात बताई थी हमको, जो मैंने सोचा कि अपने जितने भी नीताम के सेशंस हैं उसमें आप लोगों को बताऊं। हमने कहा सर चलिए सब कुछ सही है, प्रोडक्ट बन जाता है, मार्केट में कैसे उतारा जाए, कमर्शियलाइजेशन कैसे किया जाए। उन्होंने एग्जाम्पल बताया बड़ा अच्छा, वो एग्जाम्पल समझिए तो बात समझ में आए।
डेलावेयर में बीचेस बहुत हैं। बीच जानते हैं आप लोग? बीच, समुद्र का किनारा। वहां पर बीच वॉलीबॉल खेला जाता है। क्या खेला जाता है? बीच वॉलीबॉल। ठीक है, अच्छा। उस वॉलीबॉल के साथ में एक दिक्कत होती है, उस पे सैंड चिपक जाता है। क्या चिपक जाता है? सैंड। अब रेता चिपक गया, अब उसे जैसे ही किसी कंटेनर में डालो तो क्या होता है? वो पूरा का पूरा उसके ऊपर एक चीज मैं मिस कर गया। उस बॉल की खासियत ये होती है, उस पर एक स्टिकी सब्सटेंस लगा होता है, जिससे कि उसे जब रेते में डालो तो उसमें रेता चिपक जाता है और फिर उससे खेलने में मजा आता है। यहां तक मैं समझा रहा हूं क्योंकि ये हम गेम नहीं खेलते, ये वो लोग गेम खेलते हैं, उनकी सभ्यता अलग है, उनकी चीजें अलग है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मार्केट में चीजें आती कैसे हैं। एग्जाम्पल के जरिए, बॉल है जिसमें स्टिकी सब्सटेंस है, रेता चिपक गया है। अब इसे जैसे ही किसी कंटेनर में डालेंगे, क्योंकि बॉल के ऊपर स्टिकी सब्सटेंस है, तो वो कंटेनर में भी चिपकेगा, तो बॉल को बार बार निकालने में दिक्कत होगी, पन्नी में फंसेगा, पैकेट में फंसेगा। बात समझ में आ रही है? एक फीमेल थी जिन्होंने इस पे कंपनी सेटअप करी थी। उन्होंने कहा मैं एक ऐसे आइटम की पन्नी बना रही हूं जो पॉलिथीन उस मटेरियल के साथ में चिपकती नहीं, और ये पॉलिथीन कितने में बिकेगी इसकी मैं एक रिसर्च करूंगी। क्या करूंगी? रिसर्च। यहां पर एमबीए के लोग मौजूद नहीं है, मैं आपको बता दूं, एमबीए में एक चीज होती है मार्केट रिसर्च। क्या होती है? मार्केट रिसर्च, जिसमें यह पूछा जाता है कि भाई मार्केट में यह प्रोडक्ट हमारा यहां पे जिसमें यह पूछा जाता है कि मार्केट में प्रोडक्ट हमारा कितने का बिकेगा, नंबर 1, और बिकेगा तो कितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा। उन्होंने मार्केट रिसर्च करी, आप यकीन माने $100 का वो प्रोडक्ट निकल के आया। उन्होंने $20 की रॉयल्टी मांगी और पूरा का पूरा प्रोडक्ट उठा करके किसी बड़ी कंपनी को सौंप दिया। हर प्रोडक्ट जो बिक रहा था, उस प्रोडक्ट का $20 उन तक पहुंच रहा था। अगर 1000 यूनिट पहुंचे तो $20,000 उनके अकाउंट में बिना कुछ करे। इसे कहते हैं रॉयल्टी मॉडल, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों से और ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक आइडिया देने के लिए ये एग्जांपल था। ठीक है, ओके। तो लास्ट 10 to 15 मिनट बचे हैं सेशन में, एक बार जल्दी से रैप अप कर लेते हैं। हम लोगों ने किस तरीके से प्रोडक्ट का सोल्यूशन, इसके बारे में बात करी। हम लोगों ने कैसे जाना पेटेंट अलग होता है, डिजाइन अलग होता है, कॉपीराइट अलग होता है, ट्रेडमार्क अलग होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अलग होता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेते हैं। यहां आपको ऐसा लगेगा कि चीजें भगाई जा रही हैं, लेकिन जो बातें मुझे आपको
मैं आपको उतना बताऊं जितना आप आज अच्छे से समझ जाएं। अच्छा ये डाउन हो गई क्या? ओके, जिससे आप अच्छे से इस चीज को समझ जाएं आज के लिए। आगे के जो सेशन होंगे हम लोग उसमें कमर्शियलाइजेशन और फाइलिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए पेटेंट कहां मिलता है? कंट्री में मिलता है। हर कंट्री का पेटेंट ऑफिस अलग होता है, ठीक है। टू अ पर्सन गिविंग एक्सक्लूसिव राइट, एक बार पेटेंट आपको मिल गया, आपका एक्सक्लूसिव राइट है, कोई आपको कॉपी नहीं कर सकता, ठीक। किस किस काम के लिए? एक्सरसाइजिंग, वेंडिंग एंड इंपोर्टिंग एंड इन्वेंशन। पेटेंट किसके लिए यूज होता है? इन्वेंशन के लिए। देख लो डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है, ठीक है। फॉर ए लिमिटेड पीरियड, पेटेंट का प्रोटेक्शन 20 साल के लिए दिया जाता है। कितने टाइम के लिए? 20 साल। ओनली फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद में वो टेक्नोलॉजी फ्री हो जाती है सबके लिए यूज करने के लिए। आप तब तक कोई नई टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, फिर आप उससे कमाना शुरू कर देते हैं, फिर कोई नई बना लेते हैं, उससे बनाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, आज की तारीख में हमारे देश में ऐसे कॉलेजेस मौजूद हैं जो एक साल में 1000 पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं। एक साल में 1000 पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं। ऐसे कॉलेजेस मौजूद हैं, जिसमें आपका सबसे पहला कॉलेज है संस्कृति यूनिवर्सिटी, जहां ऑफकोर्स जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सेकंड, और आपको जान के हैरत होगी, टॉप 3 में एक भी आईआईटी नहीं है। एक भी आईआईटी टॉप 3 में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी चीज से मैं कंक्लूड कर रहा हूं। सेकंड थिंग, तीसरे नंबर पे सबसे इंटरेस्टिंग है। सबसे इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि मैं उस यूनिवर्सिटी के साथ ही सबसे क्लोजली एसोसिएटेड हूं, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, TMU। हम लोगों का एसोसिएशन नीपाम 1.0 में 2.0 में हुआ था। वो तब 7th रैंक पे थी, आज की तारीख में वो 3rd रैंक पे है। वो भी 1000 प्लस पेटेंट फाइल करते हैं। हम यहां पर एक इन्वेंशन की प्रॉब्लम सोच करके एक पेटेंट फाइल करने की बात कर रहे हैं, वो 1000 कर रहे हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, उसका रीजन ये है उनके पास वो अवेयरनेस मौजूद है जो आज हम तक पहुंची है। अगर ये अवेयरनेस हम तक 1 साल पहले पहुंची होती तो शायद 1000 नहीं, हमने अभी तक 20 पेटेंट फाइल कर दिए होते। अगले साल हम 100 पे पहुंच गए होते। और ऐसे करते करते डाउन द मेमोरी लेन एक गवर्नमेंट कॉलेज फ्रॉम बदायूं, देखिए एक बात बता दूं, दिल्ली से किसी कॉलेज को उठा के टॉप 3 में पहुंचा देना एक अलग चीज होती है, बट बात तब है जब स्टूडेंट्स के दिल तक ऐसे ये बात पहुंचे कि फ्रॉम बदायूं या ऐसे किसी सिटी से स्टूडेंट्स मोटिवेट होकर के पेटेंट फाइलिंग में आ गया, राइट। अब इसमें करना क्या होता है? अभी हम लोग बात करेंगे पेटेंट फाइलिंग होती कैसे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट फाइलिंग का एक बेसिक चार्ज लेती है, जो कि कंपनीज के लिए बहुत हाई होता है। एक पेटेंट को फाइल करने के लिए एक कंपनी को अप्रोक्सीमेटली अराउंड 80,000 रुपीज देना होता है, जो कि उनके लिए बड़ी बात नहीं होती। अरे यार, जो करोड़ों में कमा रहे हैं उनके लिए 80,000 कुछ नहीं होता। लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं, मेरी भी कैंटीन में उधारी रह चुकी है, मैंने भी 10-20 रुपए की मैगी कैंटीन में खाई है। वहां पे उस स्टूडेंट्स के लिए 20,000, 40,000, 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बात देखते हुए स्पेशली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड फॉर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स ये प्रावधान रखा है कि ये जो 50-60 हजार रुपए हम लिया करते थे फ्रॉम स्टूडेंट्स, द ओनली फीस टेकन विल बी 8,000 रुपीज। और यही नहीं, अगर इस 8,000 रुपए में आप सिर्फ पब्लिकेशन चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई बस मेरे नाम पे पेटेंट पब्लिश हो जाए, मेरा नाम हो जाए कि हाँ भाई मैं ये भी कर लेता हूं, तो उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज। लेकिन हां, फर्स्ट स्टेप पूरा करने के बाद अभी आपसे उम्मीद किस चीज की है मैं बता दूं। आपसे उम्मीद है आप पब्लिकेशन कर लीजिए, पहला कदम आप पब्लिकेशन तक आ जाइए। मतलब कोई प्रॉब्लम सोची, कोई सोल्यूशन सोचा, सर को बताया, हमने मिलकर ड्राफ्ट करा, ड्राफ्ट करने के बाद में हमने पब्लिश करा दिया। पहली चीज तो तय हो गई, बदायूं के कॉलेज से बच्चे पेटेंट फाइल कर रहे हैं, ग्रांट या रिजेक्शन की बात नहीं।
उसमें लगते हैं 4,000 रुपीज। लेकिन अब हमारे बच्चे अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ में आने लगे। ये एक जर्नी है सर, ओवरनाइट नहीं होगी। अब अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि ग्रांट या रिजेक्शन तक जाया जाए, तो कॉस्ट कितना आता है? 8,000 रुपीज। और ये कॉस्ट कौन लेती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यासिर सर नहीं लेते, या यहाँ पे संजीव सर नहीं लेते, ठीक है। ये कॉस्टिंग आती है आपकी फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब इसमें एक और बड़ी खूबसूरत बात है जो बता करके आज के सेशन को खत्म करूंगा। पेटेंट को फाइनल ग्रांट तक पहुंचने में हमारे देश में 1 से 1.5 साल लग जाता है। कितना? 1 से 1.5 साल। अब यार स्टूडेंट्स का आधा सेशन खत्म हो जाता है। अगर 3 साल आपका बीएससी है, 1.5 साल में तो आपका आधा बीएससी कंप्लीट हो गया और 3rd ईयर का बच्चा तो पास आउट ही हो गया। इस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ी यूनिक चीज निकाली। उसने कहा एक काम करो, अगर सारे के सारे इन्वेंटर्स में, एप्लीकेंट में जो अप्लाई कर रहे हैं इन्वेंशन, एक भी फीमेल इन्वेंटर मौजूद है। कौन? फीमेल इन्वेंटर। तो यही इन्वेंशन जो 1 से 1.5 साल लग रहा था, वो 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। This is done to promote female inventors of our country and the female applicants of our country, जिसको देख करके आज ये देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा फीमेल इन्वेंटर्स आगे आ रही हैं और एप्लीकेशंस को फाइल कर रही हैं, राइट। और इसको स्पीड अप कराया जा रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स कॉस्ट आते हैं, कुछ अलग अलग पैसे उसमें खर्च होते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, 5-6 लोगों का ग्रुप होता है। एक सिंगल आदमी पेटेंट फाइल नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा तुम करो, जैसे हम लोगों के भी कॉलेज के टाइम पे होता था, थोड़ा तुम डालो, थोड़ा तुम डालो, थोड़ा तुम डालो, ऐसे करके फाइल हो जाता, राइट। ओके, नाउ विद दीज वर्ड्स लेट्स कम टू द एंड ऑफ द सेशन। ये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट मतलब स्लाइड्स हैं, इन्हें बस देखते चले जाइए। कुछ फेमस इन्वेंशंस हमारे देश के, कुछ फेमस डिजाइन्स, सम पेटेंट्स, पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग। ये अभी आप लोगों को नहीं समझना है, ये आपके प्रोफेसर्स के लिए हैं, जो कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन में हम लोग बात करेंगे। आप लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से पेटेंट फाइल होते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, इसका लोड आपको नहीं लेना है। आपका काम है प्रोडक्ट बना करके प्रोफेसर्स के पास आना, प्रोफेसर्स की टेंशन है कैसे फाइल करना है उसको, ठीक है। ये जो मैं फीस आपको बता रहा था, 28,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ फाइलिंग के लग जाते हैं कंपनी के लिए, ठीक है। जो कि कॉस्ट हमारे स्टूडेंट्स के लिए 5,600 रुपए आता है। और इसी को अर्ली पब्लिकेशन कराना एक दूसरी चीज है जो इसमें नोटेड नहीं है, उसे मिला के कॉस्ट 8,000 रुपए आता है, जो मैंने आपको बताया। क्योंकि मैं आपको वो कॉस्ट बता रहा हूं कि कल जब आप फाइल करने चलेंगे और आपको पता होगा कि इतना अमाउंट है, अगर इससे 1 रुपए भी ज्यादा हुआ तो आप यासिर सर से पूछेंगे, सर ये बताइए आपने तो 8,000 बोला, हम उतना ही जोड़ के ले आए हैं, अब उससे ज्यादा हमें पता नहीं है, राइट, ठीक है। लेकिन हाँ, इस पर एक चीज समझने की जरूरत है, पेटेंट को ड्राफ्ट करना, पेटेंट को लिखना, यहां पे प्रोफेसर मौजूद हैं। एक रिसर्च पेपर को लिखने में बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, तो एक पेटेंट को लिखने के लिए भी एक टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, जिसके लिए प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं, वो एक अलग से फीस लेते हैं, राइट। लेकिन वो वेरिएबल होती है स्टूडेंट्स के लिए, वो काम आपका नहीं है, वो यहां पे प्रोफेसर मौजूद है, वो जानते हैं कैसे कराना है। मतलब मैं इनको बताऊंगा ऑफकोर्स कैसे करना है, बट आपका जो काम है, आपको जो प्राइस पता होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, और जो काम है आपका मैंने आपको वो बता दिया। ये हमारी वेबसाइट है जहां पे आपको कंप्लीट फाइलिंग प्रोसीजर मिलता है। ये हमारी ऐसी कुछ वेबसाइट दिखती है। एक्सपेडाइटेड में एप्लीकेंट एज अ फीमेल, जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। सम डिजाइन के बारे में बात, डिजाइन क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन, फॉर्म एंड फीचर। सम डेफिनेशंस, सोफे की डिजाइन, घड़ी की डिजाइन, साइकिल की डिजाइन, हर चीज डिजाइन रजिस्ट्रेशन में प्रोटेक्ट कराई जाती है, ठीक है। सेट ऑफ आर्टिकल्स, ज्वेलरी का डिजाइन, ये जितने भी तनिष्क और जितने भी बड़े आपके वो होते हैं, उनके कहा जाता है ना, ये फला की फर्स्ट कॉपी है, फला की सेकंड कॉपी है। लेकिन आपको पता होगा कॉपी को कोई भी खुल के बेच नहीं सकता है। खुल के बेचने का मतलब क्या हुआ, अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट लेट अस से 50 करोड़ कमा रहा है, तो आप कॉपी बेच करके 1 करोड़ तो कमा सकते हो, जब तक आप उनके रडार पे
नहीं आ रहे हो। एक बार आप उनके रडार पे आ गए और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जो 50 करोड़ कमा रहा है वो आप उसके प्रोडक्ट से आप कहीं से 50 लाख 1 करोड़ कमा लेने फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि नाइकी की कॉपीज बिकते हैं, आप लोगों को पता होगा। उन्हें तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक एक लेवल तक डैमेज ना होने लगे, और जब वो देखते हैं वो एक लेवल पे डैमेज होता है, भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखते हैं, वो जगह बताते हैं यहां से हो रहा है, वहां पे छापा पड़ता है, सारी चीज सीज हो जाती है, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द वेरियस डिजाइन प्रोटेक्शन एक्ट्स। ठीक है। फाइलिंग ऑफ डिजाइन एप्लीकेशंस कैसे फाइल करते हैं? ऑनलाइन। अच्छा, एक बात और है, पेटेंट ऑफिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट ऑफिस। यहां पे आपको दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दफ्तर नहीं है, जहां पे मैं काम करता हूं वो दफ्तर नहीं है। वहां पे किसी भी एप्लीकेंट को आने की जरूरत नहीं होती, आपका सारा काम ऑनलाइन होता है। हम ऑनलाइन जवाब लिखते हैं, आप ऑनलाइन जवाब देते हैं, ऑनलाइन हियरिंग होती है, ऑनलाइन जजमेंट होता है, 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है। ये कुछ फीसेज हैं, एनीवेज, पब्लिकेशन। देन वी हैव ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। देन वी हैव ट्रेडमार्क्स। ये देखिए, मैकडॉनल्ड्स का एम ट्रेडमार्क है, कोका कोला का ये लिखा हुआ ट्रेडमार्क है, कोलंबिया, एडिडास, ये सारी चीजें ट्रेडमार्क। अ गुड ट्रेडमार्क। एनीवेज, जैसे ही आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं, आपने देखा होगा टीएम लिखा हुआ आ जाता है, और अगर ट्रेडमार्क ग्रांट हो जाता है तो क्या लिख के आता है? आर। ठीक है। हाउ टू प्रोटेक्ट ट्रेडमार्क। कॉपीराइट्स। कॉपीराइट के बारे में, व्हाट इज कॉपीराइट? अभी चीजें भगाई जा रही हैं जिससे कि जो बातें बताई गई हैं वो एंड में कंक्लूड कर दी जाएं। सिनेमैटोग्राफिक फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग्स, म्यूजिकल वर्क, ड्रामेटिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, ये सारा किसमें आता है? कॉपीराइट। कितना ड्यूरेशन होता है? पेटेंट का ड्यूरेशन कितने साल होता है? 20 साल। डिजाइन का याद कर लीजिए, मैं भूल गया बताना, 10 साल प्लस 5 साल। 10 साल प्रोटेक्ट होता है, आप चाहें तो उसे एक्सटेंड करा सकते हैं 5 साल और के लिए। ठीक है। SICLD। देन वी हैव ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में ये देख लीजिए, दार्जिलिंग टी, मकराना मार्बल जिससे आपका ताजमहल तैयार करा गया है, ठीक है, वो मार्बल, ये सारी की सारी चीजें आपकी जीआई हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये देखिए, ये सिल्क है तमिलनाडु का, जो कि वो है, ये सेब है, सेब मध्य प्रदेश के सेब है, ये भी जीआई में है। दार्जिलिंग की चाय, ये भी जीआई में है। ये सारे जीआई का मतलब ये हो जाता है कि अब ये पूरे वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट्स हो गए। अब इसका प्रोडक्शन करने पर जो लोकल लोग हैं वहां के, उनको मदद मिलेगी, राइट? कोई भी बाहर का इसका यूज नहीं कर सकता। ठीक है। ये हमारे डिजाइन है, हमारे फल फ्रूट है जिसको हम जीआई करते हैं। आईपी इज एवरीवेयर। आइए कंक्लूड कर लेते हैं सेशन को। पेटेंट 20 साल के लिए होते हैं, डिजाइन 10+5 ईयर्स के लिए होते हैं, ट्रेडमार्क हमेशा के लिए होते हैं। एक बार आपको ट्रेडमार्क मिल गया, आपकी कंपनी का नाम है, जब तक चाहे उतने टाइम यूज करें। जीआई भी हमेशा के लिए होते हैं, एक बार आपको जीआई मिल गया हमेशा के लिए। कॉपीराइट, ठीक है, वो सबके लिए अलग अलग होता है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? हर इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है। आप चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा ग्रुप चाहे पूरा ग्रुप अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए। यहां नीचे में क्या लिखा हुआ है? ऑल आईपी राइट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर। बोले तो इंडिया में लिया गया प्रोटेक्शन इंडिया तक ही वैलिड है, इंडिया के बाहर वैलिड नहीं। ठीक, आज मौका नहीं है, वरना इंडिया से बाहर की भी बात करी जाती। पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या करना है? सबसे पहली चीज सर, जो भी बनाना है उसे मार्केट में लाने से पहले प्रोटेक्ट कराना है, पेटेंट्स फाइल कराने हैं। पेटेंट ड्राफ्टिंग की टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट बताना है, उसको ड्राफ्ट करके एक पेटेंट की शक्ल देना मेरा काम, मतलब ऑफ कोर्स आपके प्रोफेसर का काम। ठीक है, उसको ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट करके पेटेंट को फाइल करना है, आपकी पेटेंट फाइलिंग बढ़ेगी उससे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट जॉब, जिसको सुनते ही हम लोग सब एक्साइटेड हो जाते हैं। सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब जो पेटेंट ऑफिस में अवेलेबल है, उस जॉब में मैं हूं, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन्स। इसकी वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में आई थी। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर साइंस स्टूडेंट्स होती है एमएससी। क्या होती है? एमएससी। ठीक है। फिजिक्स के पेटेंट ऑफिसर्स हमारे ऑफिस में मौजूद हैं।
मैं बता दूं, ठीक है। इसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, जैसे यूपीएससी के होते हैं, ठीक है। हाँ। अच्छा, मिस्टर राजेंद्र, अच्छा अजेंद्र, ओके। ये फिजिक्स के भी पेटेंट ऑफिसर्स मौजूद हैं हमारे ऑफिस में, सर के भी एक स्टूडेंट मौजूद है, राइट। एमएससी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, देन वी हैव ट्रेडमार्क। जो लॉ करते हैं वो लोग इसमें आते हैं, जो लॉ करते हैं वो कॉपीराइट्स में आते हैं। इसके सिवा और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप लोग मेरे कनेक्ट में रहेंगे, मैं आपको और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आज मेरी आपसे जितनी रिक्वायरमेंट है उसे करिएगा। ये अभी तक मैंने आपसे किसी चीज की फोटो लेने को या वो नहीं कहा है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पे हमारी ट्रेनिंग होती है। जैसे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग लबासना में होती है, वैसे पेटेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग नागपुर में होती है, आरजीएन आईपीएम में। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है और ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, yasirabbas.ipo@gov.in। एंड फाइनली ये हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। सो विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड में थोड़ा सा बोरिंग हो गया हो तो सॉरी, बट आई होप आप लोगों को जो बात बताई है आप उस पर काम करेंगे। यू विल कम अप विद गुड सॉल्यूशंस एंड वी विल ट्राई टू फाइल मोर एंड मोर पेटेंट्स। मैं जब नेक्स्ट टाइम यहां पर आऊं तो होपफुली 3 या 4 पेटेंट्स हमारे प्रोसेस में हो और हम उसे फाइल कर रहे हो और अपने इस कॉलेज को नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक जगह दे रहे हो कि हाँ भाई हम भी कुछ काम कर रहे हैं, हम भी अपने इंस्टीट्यूट को एक जगह पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जॉब प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद सर। हमने जितना सोचा भी नहीं था, हमें उससे कहीं ज्यादा नॉलेज मिल गई है। और बच्चे कुछ बच्चे थोड़ा सा जल्दी में थे क्योंकि आज एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, अच्छा। इस वजह से। परंतु जो भी बच्चे यहाँ बैठे थे और आई एम श्योर उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे ध्यान दिया है। छात्रों के लिए आयोजित बौद्धिक संपदा अधिकार IPR पर जो 1 दिन की जागरूकता कार्यशाला के समापन सत्र में प्रोफेसर यासिर अब्बास सर का मैं एक तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और इनके गहन विचार जो इन्होंने प्रस्तुत किए उससे बच्चों को बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और उन्होंने बौद्धिक संपदा की मौलिक अवधारणा को सरल शब्दों में समझाते हुए बताया कि किस प्रकार अपने विचार, शोध और नवाचार का अधिकार की संरक्षण आज के युग में अत्यंत आवश्यक है। हम लोगों ने बच्चों जैसे संपदा, हमें पता है कि धन आपने जो कमाया है या कोई ऑब्जेक्ट है उसकी सुरक्षा कैसे की जाती है हमें सिखाया जाता है। पर आज हमने एक और तरह की प्रॉपर्टी के बारे में सीखा है क्योंकि हम अनजाने में इसका कोई यूज कर ले रहा है, हमें उसकी पता ही नहीं है। तो जितने भी थॉट्स आपके आ रहे हैं वो भी आपकी बौद्धिक संपदा है जिसका हमें संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है आगे चल के रिसर्च फील्ड में या इनोवेशन फील्ड में। रिसर्च फील्ड और इनोवेशन फील्ड नॉट फॉर ओनली साइंस स्टूडेंट। किसी के भी माइंड में ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। आजकल छोटी छोटी हमने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रॉब्लम इज द solution is the solution to the problem is invention। यानी कि आपके आसपास जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये हर कॉमन व्यक्ति के लाइफ में आप लोग फेस करते हैं और उसी का सलूशन निकालना ये क्या है, इन्वेंशन। तो कोई भी कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड का हो वो एक इन्वेंटर बन सकता है। सर ने आज हमें मोटिवेट किया है और सर ने बहुत ही सारी चीजों के कॉपीराइट के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में, पेटेंट्स के बारे में ये सब हमें बताया है। तो आज से हम लोग जो भी आसपास की समस्याएं हैं उनको भी फाइंड आउट करें, देन प्रॉब्लम्स पे ना स्टिक होके उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करें। और उसके बाद की स्टेप बताएं कि अगर सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है तो हमें क्या करना है, उस सोल्यूशन को पढ़ें,
और उसके बाद उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ला सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी अब तक यूज हुई है, और एक्चुअली बेसिक में जो हम रिसर्च करते हैं वो भी यही होता है, रिसर्च जो हो रहा है वो भी हमारा यही है। और यहाँ भी हम ICAR में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन बन चुके हैं उससे भी हम और रिफाइन कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं और सोसाइटी को दे सकते हैं। सभी बच्चों की तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक फीडबैक फॉर्म आप लोग को ग्रुप में अवेलेबल कराया जाएगा शाम तक। आप लोग को उसे कल तक भरना होगा, 24 घंटे के लिए वो ओपन रहेगा। और अब ये सेशन का एंड हो रहा है, इसके 1 घंटे बाद हम दूसरे सेशन जो फैकल्टी के लिए है, जो हमारा पूरा डीप, क्योंकि आप लोगों ने आज अवेयर हुए हैं कि क्या चीज होती है ICAR, पहली बार आप लोगों ने नाम सुना होगा। हम लोग थोड़ा सा और डीप जाएंगे कि हमें कैसे फाइलिंग करना है। और आप लोग इस सेकेंड सेशन में जो इंटरेस्टेड हैं, कि अभी तक हमें केवल अवेयर कराया गया, आगे प्रोसेस नहीं बताया गया है, हमें सेकेंड सेशन में प्रोसेस बताया जाएगा। अगर आप लोगों में जो इंटरेस्ट है वो यहाँ फिजिकली बैठ भी सकता है और या ऑनलाइन भी जुड़ सकता है आगे के प्रोसेस को समझने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ ये सेशन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। 2 बजे अगला सेशन प्रारंभ होगा। जो बच्चे इससे आगे भी कहानी सुनना चाहते हैं वे इस कार्यक्रम में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों